Hello everyone. A very good afternoon to one and all present here. I Krunal Padil welcomes you all. Today we are coming with a one more session under the initiative for the engineers by the engineers. Dear teachers, friends and my fellow batchmate, it gives me the immense pleasure to introduce you all our chief guest Mr. Ashish Rajesh Lad sir, who is an HVAC project engineer in a Contact Airflow Project Private Limited. He has done bachelor's in mechanical engineering from Viva Institute of Technology in the year 2015. He has done postgraduate diploma in HVAC from Suvidha Institute. He has more than 5 years of experience in HVAC industry. As a HVAC project and planning engineer, Sir has done many high-value projects like Intas Pharma, Ahmedabad, whose project value is 3.4 CR. IOLCB Barnala, whose project value is 1.7 CR. Suek Pharma Boisar, whose project value is 1.5 CR, and many more. This was a little introduction about our chief guest. Now I would request everyone to make their session interactive. So without wasting much time, we will begin with our session. Now I would like to invite Ashish sir to share their knowledge with us. Good afternoon, everyone. I would like to introduce myself as Kunal has introduced me. That I have done mechanical engineering from Viva Institute of Technology, and after that, I have done a specialized course in HVAC, that is heating, ventilation, and air conditioning. So my interest was first in HVAC only. So I have done after mechanical, I have done the HVAC course. So today I will introduce the new industry, that is our HVAC industry, to you all. I think so. Third year and fourth year students are also included in this session. So I would like to introduce the industry, that is HVAC industry, to you all. Because as a mechanical engineer, after engineering, what we have to do is the main question to all. That's why I have to like to introduce you a industry, that is a HVAC, heating, ventilation, and air conditioning. So I will share you uh, my experience and all the things what I have. So I will start with the PPT. Hello, Yes sir. am I audible to everyone? Yes sir. Yes, yes. Okay. Everyone will be comfortable in Hindi because I'm very much comfortable in Hindi also. Yes sir. No problem. Okay. So today we are means I will introduce to industry, that is HVAC. तो HVAC इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको जो भी नॉलेज है मेरे पास, जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, वो आपको मैं शेयर करता हूँ। उससे पहले हमें ये जानना है कि ये HVAC इंडस्ट्री इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अभी हमने थर्ड ईयर में हमारे मतलब व्हेन वी आर स्टडिंग, हमने थर्ड ईयर में RSC करके एक सब्जेक्ट था हमारे को। तो हमने उसमें हमने HVAC के बारे में हमको नॉलेज मिला था, बट दैट वाज अराउंड means that was for like HVAC in aeroplanes and all, but the basic concept is that it was a HVAC. So today I will share you the HVAC industry that we are using in a commercial way. Okay. So first we'll know that what is HVAC. HVAC is a heating, ventilation, and air conditioning. Okay. Uh, H stands for heating, as I tell you.
तो हीटिंग में मतलब हमारे पास काफ़ी चीज़ें रहती है, जैसे हीटर्स रहते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर्स रहते हैं। बाकी हमारे जो भी प्रेशर वेसल्स रहते हैं जो उसमें हीटिंग की ज़रूरत होती है, दैट ऑल्सो कम इन HVAC, बिकॉज वो मेन रोल प्ले करता है। तो हम लोग को आगे, जैसे हम लोग सेशन में आगे बढ़ेंगे, हमको उस चीज़ में पता चलेगा। फिर दूसरा है आपका ये वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मेरे ख्याल से आपने हर जगह देखा होगा, जैसे कि हमने अपने घर पे भी क्रॉस वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेशन थ्रू विंडोज होता है, या आपने कोई भी इंडस्ट्रीज में देखा रहेगा वहाँ रूफ एक्सट्रैक्टर्स वगैरह लगा रहता है, दैट इज फॉर पर्पस ऑफ वेंटिलेशन। और उसके वजह से जो आपके स्मोक्स है, मॉइस्चर है, हीट है, स्मोक, बाद में अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड या अलग अलग जो हजार्डस गैसेस है जो इंट्रोड्यूस हो रहे वो रूम में, उसको हमें एज अ वेंटिलेशन के थ्रू निकालने के लिए हम लोग ये वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। जैसे फैंस रहते हैं, फिर रूफ एक्सट्रैक्टर्स रहते हैं, तो वेंटिलेशन होता है उसे। फिर एसी मतलब एयर कंडीशनिंग, जो हम लोग डेली बेसिस पे अपने घर पे, मॉल में, या आप एयरपोर्ट जाओगे, उसमें हम लोग को जो दिखता है, जो हम लोग को कूलिंग महसूस होती है, दैट इज नोन एज एसी, एयर कंडीशनिंग। तो HVAC इज अ हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग बेसिकली। तो उसमें मेन क्या रहता है, जो फैक्टर्स रहते हैं, फैक्टर्स फॉर डिजाइनिंग एन HVAC सिस्टम। फॉर एग्जांपल, मुझे एक HVAC सिस्टम डिज़ाइन करना है, ओके। तो उसके लिए मुझे क्या क्या पैरामीटर्स को मुझे ध्यान में रख के डिज़ाइन करना है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि पहला फैक्टर है, दैट इज टेम्परेचर, हीटिंग एंड कूलिंग। अभी HVAC पहली बात आपको यूज़ में आएगी जैसे कमर्शियल हो जाता है, और अ, दूसरा होता है आपके फार्मा लाइन्स में, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल एरिया, दैट इज़ फूड इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज। फार्मा में भी काफ़ी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज आते हैं, दैट इज़ लाइक अभी जो वैक्सीन का हो रहा है वो एक क्रिटिकल सेक्टर है। दूसरा आपका सेक्टर होता है कि आपका, जैसे कि कैंसर की दवाई बन रही है, या दूसरे जो नॉर्मल मतलब जिसमें कंफर्ट रहता है, जिसमें आपका API बल्क ड्रग्स वगैरह बनता है, वो इंडस्ट्री में आपको टेम्परेचर और RH, जैसे हीटिंग एंड कूलिंग, आपको फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा है ह्यूमिडिटी और डिह्यूमिडिफिकेशन। अभी उसमें ये होता है कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसमें हमें ह्यूमिडिटी अगर आ गई, जैसे कि मिल्क पाउडर बन रहा है या कोई भी आपके जो रॉ मटेरियल्स बन रहे हैं, उसमें अगर ह्यूमिडिटी आपका एरिया में बढ़ जाता है, तो उसके वजह से लम फॉर्मेशन हो जाता है, जो प्रोडक्ट बना है वो भी डैमेज हो जाता है। उसके वजह से काफ़ी एरियाज में हमको ह्यूमिडिटी मेंटेन रखनी पड़ती है, और कुछ कुछ एरिया रहते हैं जहाँ हमको डिह्यूमिडिफाइड करना पड़ता है, जहाँ ह्यूमिडिटी की मतलब वेरी लो ह्यूमिडिटी, दैट इज अराउंड 10% RH और 9% RH और लेस देन 9%, तो एरिया में हमको ये ह्यूमिडिटी मेन फैक्टर है। तो मेन फैक्टर रीज़न है कि अगर ह्यूमिडिटी हो जाती तो आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। और दूसरा है एयर फ्लो, दैट इज वॉल्यूम एंड वेलोसिटी। अभी क्या होता है, जैसे कि जैसे आप अगर कोई HVAC सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें मेन होता है ACPH, दैट इज एयर चेंजेस पर आवर। अभी कोई एरिया है जहाँ आपका HVAC सिस्टम लगा हुआ है, तो उधर अगर जो एयर चेंजेस कम रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया या जो भी चीज़ें रहती है हवा में, वो वही की वही रहेगी, और वही आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं। अगर प्रॉपर एयर चेंजेस रहेगा तो आपको एरिया में कंफर्ट महसूस होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल भी बराबर रहेगा, तो उससे वजह से आपको एक कंफर्ट एटमॉस्फेयर मिलेगा जिसमें आप काम कर सकते हैं। और सेकेंडरी फैक्टर्स है जैसे कि नॉइज़ है और प्योरिटी। नॉइज़ ये फैक्टर जो है, ये कब इंट्रोड्यूस होता है, जैसे कि आप कोई एनिमल हाउस के प्रोजेक्ट्स कर रहे हो या एनिमल हाउस का सिस्टम डिज़ाइन करो, बिकॉज एनिमल्स आर वेरी सेंसिटिव टू साउंड। तो उनको मतलब जब ये सिस्टम चलती, क्योंकि इसमें ब्लोअर मोटर्स वगैरह रहते हैं, दैट इज़ अ मूविंग पार्ट, तो वो एक साउंड जनरेट करते हैं। तो साउंड जनरेट करने के वजह से एनिमल्स को ज़्यादा साउंड के वजह से उनको चिड़चिड़ापन हो जाता है, और दे रिएक्ट टू दैट साउंड। तो उनके लिए साउंड फैक्टर्स भी रहते हैं। तो एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग आपको साउंड भी देखना है, उसके कितना डेसिबल्स के लिए वो जो एनिमल है उसको क्या क्या डेसिबल्स का साउंड के लिए उसका एटमॉस्फेयर रहेगा। और दूसरा रहता है प्योरिटी। प्योरिटी ये फैक्टर जो है सबसे ज़्यादा आपको फार्मा कंपनीज में मिलेगा, बिकॉज वी आर डूइंग फार्मा प्रोजेक्ट्स। तो हमको ये पता है कि प्योरिटी, क्योंकि क्लास ऑफ क्लीनिनेस मेंटेन करना पड़ता है, क्लास A B C D ऐसे, तो क्लासेस रहते हैं।
जिसमें ए है आपका जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल क्लास होगा, दैट इज अंडर एल एफ, लेमिनार एयर फ्लो। क्लास बी, सी, डी, ये भी आपके काफ़ी क्रिटिकल है। जिसमें डी है वो कंफर्ट क्लास है, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सब जो फैक्टर्स एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग एज अ डिजाइनर या एज अ इंजीनियर अपने को ध्यान में रखने पड़ते हैं। दूसरी बात ये है फंक्शंस, तो कंट्रोल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये सबसे मेन फैक्टर है जो एचवीएसी में अपने को कंट्रोल करने हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो आपका प्रोडक्ट्स या जो भी आपका कंडीशन या पैरामीटर जो आपने डिज़ाइन किए या डिराइव किए उसमें प्रॉब्लम आएगी, अगर ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर में कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं। फिर दूसरा आता है डिफरेंशियल प्रेशर। तो अभी एचवीएसी में मेन आपको ध्यान देना है चार चीज़ों पे: टेम्परेचर, आरएच, ह्यूमिडिटी और प्योरिटी। तो ये प्रेशर डिफरेंस का आपको मैं बताऊंगा कि डिफरेंशियल प्रेशर क्या होता है। कि जैसे कि आपका एटमॉस्फेयर के कंपेयर में आपका रूम पॉजिटिव प्रेशर पे है। पॉजिटिव इन द सेंस, जब आपका डोर खुलेगा तो जो हवा रूम की है दैट विल गो आउटसाइड, दैट विल एक्सफिल्टर इन द एटमॉस्फेयर, मीन्स दैट विल इनफिल्टर इन द एटमॉस्फेयर। उसके वजह से जो भी आपका रूम में कोई अनकंटामिनेटेड पार्टिकल्स नहीं आना चाहिए, तो वो प्रेशर में आपको पता चलेगा। तो जब आप मैं जब मतलब हम लोग कभी एक साइट विजिट होगा इन फ्यूचर में, तो मैं आपको उस चीज़ का बताऊंगा डिफरेंशियल प्रेशर क्या क्राइटेरिया रहता है, वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी कंपनी के लिए, स्पेशली फूड ग्रेड और फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए। फिर बाद में क्रॉस कंटामिनेशन, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिफरेंशियल प्रेशर। फिर मेंटेनिंग प्रॉपर एयर मूवमेंट, तो उसके लिए जो एसीपीएच मैंने आपको बताया, एयर चेंजेस पर आवर, वो भी आपको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका भी एक चार्ट है, दैट इज डिराइव्ड चार्ट। तो आपको पता चल जाएगा कि इतना आपको एयर चेंजेस पर आवर रखना है कोई भी एरिया में, जैसे कि कोई कॉरिडोर एरिया हो या आपका कोई फंक्शनिंग एरिया हो या आपका कोई डीजी रूम हो या कंप्यूटर एरिया हो, उधर क्या क्या एयर चेंजेस पर आवर रखना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वगैरह है, देर आर ऑल्सो very much they have means they are sensitive to temperature and RH। तो अगर RH वगैरह बढ़ जाता है उसके वजह से मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है तो आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें फंक्शन अपने को याद रखने हैं कि हमें क्या मेंटेन करना है, कितना मेंटेन करना है, वो चीज़ हमको एट द टाइम ऑफ डिज़ाइन याद रखना है। फिर कैटेगरीज में हमने एचवीएसी को स्प्लिट किया है। एक होता है कंफर्ट और दूसरा होता है प्रोसेस। इसमें कंफर्ट है आपका ह्यूमन कंफर्ट, जैसे कि अपने घर पे एक अपने को 18 डिग्री या 25 डिग्री में हम लोग को कंफर्ट महसूस होता है। और दूसरा होता है प्रोसेस। प्रोसेस में होता है कि जो वो प्रोसेस है, जैसे कि अपना फूड इंडस्ट्री में प्रोसेसेस ज़्यादा होते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में प्रोसेस रहते हैं, मिल्क इंडस्ट्री में प्रोसेस रहते हैं। तो वो प्रोसेस के लिए क्या आपके पैरामीटर्स होने चाहिए, वो आपको पहले से मतलब आपको पता रहना चाहिए कि ये हमें पैरामीटर्स हमें रखने हैं ये प्रोसेस के लिए। क्योंकि हर प्रोसेस का अपने अपने पैरामीटर्स रहते हैं। कोई प्रोसेस हीटिंग प्रोसेस होता है, कोई कूलिंग प्रोसेस होता है। तो कूलिंग के टाइम हमें कितनी हीटिंग देनी है कि हमें जो बंदा उधर ऑपरेटर है उसे कंफर्ट रहे, वो काम कर सके, वो सब हमको प्रोसेस के हिसाब से। क्योंकि जब आप कोई भी प्रोसेस पढ़ोगे तो उसमें उसका सब पैरामीटर्स लिखा रहता है कि ये प्रोडक्ट को इतने टेम्परेचर पे बनाना है, इतना प्रेशर रहेगा, इतना ह्यूमिडिटी रहेगी। तो वो चीज़ हमको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ है कि एप्लीकेशन, एचवीएसी का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है। एचवीएसी एक बड़ी वास्ट फील्ड है, पर काफ़ी लोगों को इस फील्ड के बारे में पता नहीं है। जैसे कि हम लोग मॉल्स जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, तो हम लोग को एक कंफर्ट महसूस होता है, पर उसके पीछे का जो इंजीनियरिंग है वो किसी को पता नहीं। सबको लगता है कि एसी लग गई और ठंडा हो रहा है। दैट इज़ नॉट अ मेन रीज़न। उसके पीछे काफ़ी बड़ी इंजीनियरिंग है और कोर मैकेनिकल ब्रांच है। मतलब आपको हर एक चीज़ जो आप एक डिज़ाइन करोगे वो प्रॉपर आपको उसका रिजल्ट्स मिलेंगे। उसमें है जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रहती है, पेंटिंग एंड पेपर इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, हॉस्पिटल्स है, फूड प्रोसेस एरिया है, केमिकल एरिया है, कोल्ड रूम्स है, पावर प्लांट्स है। तो ये सब जगह आपका एचवीएसी सिस्टम लगता है। आज के ज़माने में आपको पता है कि कोल्ड रूम्स, दैट इज़ मतलब जो भी अपना फूड प्रिजर्व किया जाता है वो कोल्ड रूम्स में आता है।
तो उसमें भी HVAC यूज होता है। फिर दूसरा आता है कि ये आपको दिखेगा, ये रेस्टोरेंट्स है, मॉल है, क्लीन रूम है, फिर वेंटिलेटेड टनल्स है। जैसे कि हम लोग मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में जाते हैं, जो टनल्स में एक ब्लोअर टाइप एक फैन लगे रहते हैं, दैट इज नोन एज ट्यूब एक्शन फैन। वो क्यों रहते हैं कि आपका हवा पास हो जाए, क्योंकि उधर अगर एयर लॉक्स बन जाते हैं तो उसकी वजह से काफी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं, उसके लिए। फिर बाद में आप देखोगे कि कोल्ड रूम्स है, माइन वेंटिलेशन है। फिर ये जो HVLS फैंस है, वो हमने देखे रहे कि स्टेशन पे आजकल जितने भी स्टेशन पे ये हाई वेलोसिटी फैंस लगे हुए हैं। और जो आपके इंडस्ट्रियल फैंस है, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री। HVAC सोसाइटीज है, जैसे एशरे है, इशरे है, स्मैकना है, ये सब अप्रूव्ड सोसाइटीज है। तो इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, जो हम लोग इंडियंस इंडियन जो इंजीनियर्स है उसको फॉलो करते हैं। वो बुक में आपको सारा मिलेगा, डेटाज मिलेंगे आपको, जितने भी डिजाइन पैरामीटर्स है कैसे डिराइव हुए। दैट इज अ बाइबल फॉर HVAC इंजीनियर। तो ये सब स्टैंडर्ड्स है जो हमें फॉलो करने हैं। वो बुक से आपको हर एक चीज पता चलेगी कि आपके साइकोमेट्री कहाँ जा रहे हैं, आपके कौन से मतलब सब प्रोडक्ट सिलेक्शंस आपको उसमें से पता चलेंगे। दूसरा मेन, अभी HVAC पे हम लोग कोर पे बात करते हैं। दैट इज HVAC वर्क्स ऑन वन साइकिल, दैट इज मतलब वेपर कंप्रेशन साइकिल पे अपना HVAC वर्क करता है। ये वेपर कंप्रेशन साइकिल आपने अपने इंजीनियरिंग जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको आएगा या आ चुका होगा। दैट इज, उसमें चार कंपोनेंट सबसे मेन है: इवोपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपांशन। तो मेन ये रहता है कि ये सारे है ना, एक टाइप ऑफ, जैसे इवोपरेटर और कंडेंसर है, वो एक हीट एक्सचेंजर है बेसिकली। दैट इज शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। और मतलब बाकी भी जो हीट एक्सचेंजर्स आते हैं मार्केट में उस टाइप के रहते हैं। तो मेन क्या होता है कि आपका जो मतलब जो अपने रेफ्रिजरेंट वापर है, जैसे कि हमारे, एक एग्जांपल पकड़ते हैं, हमारे जो घर पे AC लगी है, उसका इवोपरेटर कॉइल अंदर रहता है रूम में विद ब्लोअर। और आउटडोर में जो रहता है वो कंप्रेसर रहता है और कंडेंसर रहता है। और इंडोर में आपका इवोपरेटर और एक्सपांशन वॉल रहता है। और एक्सपांशन वॉल आपको, अगर कभी आप AC खोलोगे तो एक्सपांशन वॉल में एक आपको कैपिलरी दिखेगी। दैट इज वन एंड द सेम एज अ, इट एक्ट एज अ एक्सपांशन वॉल। तो होता क्या है इसमें बेसिकली कि आपका जो रेफ्रिजरेंट आप जब चार्ज करते हैं कंप्रेसर में, तो कंप्रेसर उससे कंप्रेस करता है विथ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, उसका आउटपुट निकलता है, वो कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर एक काइंड ऑफ शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर रहता है। तो जिसमें आपके ट्यूब्स में कंडेंस मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट पास होता है। और जो एक फैन लगा रहता है आउटडोर में, आपने देखा होगा, उससे वो हीट रिजेक्शन होता है। फिर वो कंडेंसर मतलब वो गैस जो रहता है वो कंडेंस होके इवोपरेटर तक आता है। तभी उसका प्रेशर भी एज कंपेयर टू कंप्रेसर का आउटपुट पे जो प्रेशर रहता है उससे कम रहता है, और टेम्परेचर भी उससे कम रहता है। फिर एक्सपांशन वॉल के पास आपका एक कैपिलरी एक्शन होता है। दैट इज मतलब सडन डिक्रीज इन द एरिया। तो आपका उधर प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से एक स्प्रे होता है, जिसके वजह से आपका जो हॉट रेफ्रिजरेंट रहता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, वो ठंडा हो जाता है और वो इवोपरेटर कॉइल में पास होता है। और जब वो इवोपरेटर कॉइल से आपका रूम का एयर उसके ट्यूब से टकराता है, तो वहाँ हीट एक्सचेंज प्रोसेस होता है। और आपका जो रूम का हीट है वो आपका रेफ्रिजरेंट एब्सॉर्ब करने पे वो वेपर फॉर्म में चले जाता है और रूम में आपको ठंडा हवा मिलता है। तो ये बेसिक साइकिल है जो हर एक HVAC का बैकबोन है। ये आपको बेसिक आना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन HVAC इंटरव्यू और यू गोइंग फॉर एन HVAC इंडस्ट्री। तो ये बेसिक साइकिल है जिसमें आपको मतलब ये चार कंपोनेंट, वो आज के तारीख में आप कोई भी आप HVAC का कोई भी आप एक आउटडोर पकड़ लो या किसी में भी आप खोल के देखोगे, ये चार कंपोनेंट रहेंगे। बाकी भी बहुत सारे कंपोनेंट है जैसे ऑयल सेपरेटर, वो खाली एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। बेसिक ये चार कंप्रेसर तो आपको हर एक एयर कंडीशनिंग यूनिट्स में मिलेंगे। बाकी जितने भी है, जैसे कि अभी जो 3 स्टार यूनिट्स आते हैं वो सिर्फ आपका पावर कंजम्पशन कम करेगा, फिर कंप्रेसर को मतलब मॉड्यूलेट करेगा। वैसे बाकी जो
कंपोनेंट्स लगेंगे वो खाली एक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लगेंगे, उसका सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये 4 कंपोनेंट आपके परमानेंट है, जो आपको कोई भी आप एयर कंडीशनिंग को खोल के देखोगे। तो जैसे मैंने बताया, प्राइमरी कंपोनेंट कंडेंसर, इवोपरेटर, एक्सपांशन और कंप्रेसर, और जो सेकेंडरी कंपोनेंट है, ऑयल सेपरेटर्स रहते हैं, रिसीवर रहते हैं, फिर स्टेनर रहते हैं, ड्रायर रहते हैं। अभी ये वीसीएस आपका वीसीआर साइकिल है, वेपर कंप्रेशन साइकिल। इसमें आप देखोगे तो ये, जैसे मैंने बताया, कंप्रेसर से आपने कंप्रेस किया और फिर डिस्चार्ज लाइन में से गया कंडेंसर में, कंडेंसर से लिक्विड लाइन होके, मतलब जो गैस आपने कंडेंस होके वो लिक्विड फॉर्म में होगा विथ हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, वो लिक्विड लाइन से गया, फिर ये एक्सपांशन वॉल के थ्रू वहाँ एक्सपांशन प्रोसेस हुआ, दैट इज अ कैपिलरी एक्शन, प्रेशर ड्रॉप होता है, उसके वजह से फिर इवोपरेटर में वो लिक्विड आपका घूमेगा। और ये जो फैन लगा है, जैसे आप अपना एयर कंडीशन खोलोगे तो उसमें एक ब्लोअर लगा है, राउंड ट्यूबुलर ब्लोअर लगा है, वो आपका जो रूम का हवा है उसको लेता है, फिर उसका हवा जो है वो आपका हीट एक्सचेंज होता है इसमें आपके कॉइल्स पे, और फिर वही ठंडा हवा आपको रूम में वापस से रिटर्न भेजता है। तो ये एक प्रोसेस है जो आपको ध्यान रखना है, कोई भी आप एयर कंडीशनिंग यूनिट खोलोगे तो ये 4 कंपोनेंट और ये असेंबली आपको मिलेगी वहाँ। जैसे कि इवोपरेटर कॉइल है, ये हीट एक्सचेंजर है, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग एब्जॉर्प्शन होता है, लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसके अंदर जाता है, फिर इसके जो ये कॉइल्स है इसके ऊपर आपके रूम की हवा टकराती है, वहाँ हीट एक्सचेंज होता है, फिन्स रहते हैं इस पे, ट्यूब और फिन्स रहते हैं। तो इसके वजह से हीट एक्सचेंज होने के बाद वो जो आपका रूम का हवा है वो अपना जो हीट है वो छोड़ता है, और अपना जो वेब कम रेफ्रिजरेंट का जो उसका कूलिंग है वो एब्जॉर्ब करता है और फिर रूम में डिस्चार्ज हो जाता है। फिर ये आपका कंप्रेसर है, अभी कंप्रेसर ये है, फिर आपका ये जो ऑयल सेपरेटर है इधर, और ये कॉइल दिख रही है आपको, इसमें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, ठीक है। फिर ये आपके कंडेंसर है, कंडेंसर में जो बाहर का आपको दिख रहा है कॉइल्स, उसके अंदर आपका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस जाता है, रेफ्रिजरेंट गैस जाता है इन वेपर फॉर्म, क्योंकि कंप्रेसर कभी भी गैस या वेपर को कंप्रेस करता है, वो लिक्विड आपका कभी भी कंप्रेस नहीं होगा। तो वो जो एक्स्ट्रा अगर कोई लिक्विड कंपोनेंट पाथ में आ जाता है तो ऑल सेपरेटर के थ्रू वो सेपरेट होके सिर्फ प्योर रेफ्रिजरेंट इन वेपर वेपर फॉर्म वो कंप्रेस करता है। फिर ये आपका एक्सपांशन वॉल है, ये आपके सारे कंपोनेंट्स है जो एचवीएसी में, जिसमें आप फेमिलियर रहेंगे, स्प्लिट एसी से फेमिलियर रहेंगे और विंडो एसी से फेमिलियर रहेंगे। बाकी ये जितने भी दूसरे कंपोनेंट्स है, जैसे कि आप डेजर्ट कूलर से भी फेमिलियर रहेंगे। फिर जितने बाकी आपको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, जैसे डक्टेबल स्प्लिट एसी, पैकेज एसी, एएचयू, सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स, एयर कूल्ड चिलर, वाटर कूल्ड चिलर, फिर टनल वेंटिलेशन, कूलिंग टावर, ये सब आपको कमर्शियल साइड में एचवीएसी में दिखेंगे। दे आर ऑल द पार्ट ऑफ कमर्शियल। सॉरी, अभी जैसे आप देखना चाहते हैं कि अपने वहाँ जो एसी लगती है उसका एक इंडोर रहता है और एक आउटडोर रहता है। अभी सिस्टम ऐसा अपने आप को डेवलप किया है कि उन्होंने ऐसा किया है कि एक ही आउटडोर रहेगा और मल्टीपल इंडोर्स रहेंगे। जैसे कि आपको ये वीआरएफ का दिख रहा है, वीआरएफ सिस्टम्स में आप देखोगे तो काफ़ी आपको, जितने भी आपको कॉरपोरेट ऑफिस में देखोगे देखोगे तो हम लोग अगर एक एसी के लिए एक आउटडोर देते हैं, और आउटडोर जितने भी बाहर लगे रहते हैं वो काफ़ी शैबी लगता है, उसका मतलब बिल्डिंग का लुक्स वगैरह काफ़ी शैबी हो जाता है। तो उसके वजह से अभी ऐसे सिस्टम्स मार्केट में डिज़ाइन होके आए हैं जिसमें आपका आउटडोर एक ही रहेगा और उससे मल्टीपल इंडोर, जैसे कि आपका एक 30 TR का या 100 TR का टनेज का आपने एक आउटडोर बाहर लगा दिया, और आपने रूम्स में काफ़ी जितने भी आपको कॉन्फ्रेंस रूम है, आपके जो मीटिंग एरिया या आपका वर्किंग एरिया, वहाँ आपने एसी लगा दिया, तो आपका एक ही आउटडोर से सारे इंडोर्स कंट्रोल हो सकते हैं। तो उससे आपका जो बिल्डिंग का लुक है और आपका मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आपको वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको एक ही आउटडोर को देखना है, बाकी आपको मल्टीपल आउटडोर्स को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आउटडोर रहेगा और उससे आपके मल्टीपल इंडोर्स चलेंगे।
फिर मेन कंपोनेंट है जैसे एचवीएसी में आपको एक लोड कैलकुलेशन रहता है कि आपको कोई एक एरिया दिया जाएगा, जो आपको एक आर्किटेक्चरल व्यू दिया जाएगा, उसमें आपको एक एचवीएसी सिस्टम बिठानी है। तो एचवीएसी सिस्टम बिठाने के लिए आपको क्या क्या कंपोनेंट्स और क्या क्या फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। तो उसमें पहला आता है कि आपको जो आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग दे रहा है आपको, उससे आपको पैरामीटर्स पहले समझ के लेना है। फर्स्ट पैरामीटर जैसे कि आपको वो रूम में क्या टेम्परेचर मेंटेन करना है, फिर क्या ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, क्या प्रेशर मेंटेन करना है, फिर उसमें कोई ऐसे इक्विपमेंट्स है जिससे सेंसिबल या लेटेंट लोड बढ़ रहा है रूम में, वो आपको देखना है। ये चार आप चीज़ें पूछनी है। फिर दूसरा आता है कि आपको चेक करना है कि वो एरिया जो है, वो आर्किटेक्चरल जो ड्राइंग आपको मिली है वो प्रॉपर ड्राइंग है कि नहीं। फिर उसके बाद दूसरा आता है आपका कि आपके जितने भी, अभी फॉर एग्जांपल कि एक रूम है, जैसे अपने कॉलेज का एक आपका रूम है जिसमें आपके सारे चारों तरफ वॉल है, ऊपर भी वॉल है, मतलब ऊपर स्लैब है, नीचे आपका फ्लोरिंग है, और उसके नीचे और एक रूम है। तो ऐसा एक आपको एरिया डिजाइन करना है। तो उस केस में आपके जितने भी वॉल्स है उसमें से आपका हीट कंडक्शन होगा, जो आपके बाहर एटमॉस्फेयर में हीट है वो वॉल के थ्रू कंडक्ट होगी, वो भी आपका लोड बढ़ा सकती है। दूसरा होता है कि ग्राउंड, आपका अभी फॉर एग्जांपल फ्लोरिंग है, उसके नीचे कोई एक एरिया है दैट इज नॉन एयर कंडीशन एरिया, तो उधर से भी कंडक्शन होगा। फिर आपके जितने भी विंडोज वगैरह रहते हैं उसके थ्रू भी जो हीट अंदर कंडक्ट होगी रूम के अंदर। फिर आपके जो पीपल वगैरह, मतलब जो आपके ऑक्यूपेंसी घूमती है, जैसे कि 10 आदमी है या 50 बच्चे बैठे हैं, या कॉलेज का एरिया है, मतलब कॉलेज का क्लासरूम है जहाँ 50 स्टूडेंट्स है, तो हर एक स्टूडेंट अपना एक सेंसिबल हीट रिजेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये चेक करना है, तो ये आपका रूम है, आप पंखा बंद कर दीजिए और सारे डोर्स वगैरह बंद कर दीजिए, तो एक आपको अलग सी घुटन महसूस होगी। तो वो एक सेंसिबल हीट आपका बॉडी से जो मतलब प्रोड्यूस होता है, वो भी आपको ओवरकम करना है एचवीएसी में, तो वो आपको फैक्टर को ध्यान में रखना है। फिर बाद में कोई अगर आपका इक्विपमेंट्स है जैसे फैन है या आपका कंप्यूटर है, वो भी हीट रिजेक्ट करता है, तो उसको आपको चेक करना है। फिर आपके जितने भी लाइट्स रहेंगे रूम में वो भी हीट रिजेक्ट करते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के आपको एचवीएसी का हीट लोड करके एक शीट आती है, वो आपको फिल करनी है। उससे आपको जब आप फिल करोगे तो आपको ये सब डेटा जो है, जैसे वॉल लोड है, ग्लास लोड है, पीपल लोड है, इक्विपमेंट लोड है, ये सारा चीज़ आपको उसमें इनपुट करना है, तो आपको कैलकुलेशन मिलेगा कि आपको ये एरिया के लिए इतना टनेज का आपका मशीन लगेगा। जैसे कि कोई एक एरिया, जैसा अपना कॉलेज का एक 200 स्क्वायर फीट का एरिया है, उसका कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है कि 5 टन का 5 टीआर का मशीन लग रहा है, तो आपको फिर 5 टीआर का मशीन उधर इनपुट करना पड़ेगा, डोर्स वगैरह सब कुछ चेक करना पड़ेगा, तो तब आपको 5 टीआर के हिसाब से आपको उतना कंफर्ट महसूस होगा। अगर आपका कैलकुलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है या कोई क्वेरी रह जाती है, कोई इशू आते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि आपने अगर 5 टीआर के लिए डिज़ाइन किया है और आपने 3 टीआर का मशीन लगा, तो जो आपके पैरामीटर्स जो आपको पहले ही स्पेसिफाई की जाती है जैसे टेम्परेचर वगैरह, आपको वो मिलेंगे नहीं, तो फिर आपको दिक्कत होगी। उसके लिए आपको ये चीज़ पहले चेक करना है कि ये जितने भी फैक्टर्स है उसको आपको पकड़ के ही चलना है। अगर कोई भी फैक्टर आपका मिस हो जाता है और वहाँ से आपका हीट इंट्रोड्यूस होता है रूम में, तो वो आपको आपका कंफर्ट में आपको दिक्कत देगा। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। सोर्स ऑफ हीट जैसे मैंने बताया, पीपल है, लाइट्स है, इक्विपमेंट्स है, आउटडोर्स है, इनफिल्टर एयर होती है। जैसे कि आपका बाहर का एरिया है वो नॉन एसी एरिया है, तो आपके डोर्स के जो साइड के लीकेजेस रहते हैं, मतलब 2 mm 3 mm का गैप रहता है, वहां से भी हीट अंदर आ सकती है, वो चेक करना है। वॉल से आएगी, पार्टीशन से आएगी, फ्लोर से आएगी, सीलिंग से आएगी, रूफ से आएगी। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी है कि जब आप कोई भी हीट लोड कैलकुलेशन कर रहे हैं या आप कोई भी एरिया के लिए कितना टनेज उसमें लगने वाला है उसका आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ को आपको देखना है। फिर जो कंपोनेंट है, जैसे अपने घर में या कमर्शियल में आपने देखा रहेगा तो स्प्लिट एसी लगी है,
या आपके जो डक्टेबल एसी लगती है। तो आप जैसे कमर्शियल साइड में आओगे, जैसे कि आप फार्मा कंपनी में जाओगे या कोई आपके फूड इंडस्ट्रीज में जाओगे, जैसे अमूल डेयरी है, फिर बाकी जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह है, उसमें एक यूनिट लगती है जो एसी का काम करती है, वो उसे बोलते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट, दैट इज नोन एज एएचयू। एएचयू कैसा इज द लंग्स ऑफ एचवीएसी सिस्टम। वो मेन पार्ट है जो कमर्शियल एचवीएसी के लिए आपको यूज किया जाता है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि एएचयू क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो सब हम आपको आगे स्लाइड्स में बताएंगे। ये जो मशीन दिख रही है वो बेसिकली एक एयर हैंडलिंग यूनिट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेन कंपोनेंट्स जैसे है इसके फिल्टर्स रहते हैं, कॉइल्स रहती है, कूलिंग कॉइल्स रहती है, ब्लोअर रहता है, मोटर रहते हैं, फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ फिल्टर्स रहते हैं। जैसे कि आपका एरिया का क्रिटिकलिटी के हिसाब से फिल्टर्स सिलेक्ट किए जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल डी क्लास एरिया, दैट इज कंफर्ट एरिया है, हाँ इतना प्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग 5 to 10 माइक्रोन्स के फिल्टर उधर देते हैं। जैसे कि आपका कोई जैसे पैरासीटामोल बन रहे या कोई जो ओपन मेडिसिन बन रही एपीआई वगैरह होते हैं, उस केस में हमको फिल्ट्रेशन लेवल बढ़ाना पड़ता है, तो उसमें अपने को 0.3 माइक्रोन 3 माइक्रोन्स के फिल्टर्स देने पड़ते हैं। तो माइक्रोन्स का ये मतलब है कि जितना आपका फिल्ट्रेशन, मतलब जो माइक्रोन्स में है, जैसे 5 माइक्रोन 10 माइक्रोन, वो ये मायने रखता है कि आपके एयर के अंदर 5 माइक्रोन या 10 माइक्रोन का पार्टिकल को वो आसानी से जाने देगा थ्रू फिल्टर्स, और उसके ऊपर के अगर 15 माइक्रोन का पार्टिकल है तो वो अरेस्ट हो जाएगा वो फिल्टर्स में। तो उस माइक्रोन का ये मतलब है कि आपका जो फिल्ट्रेशन लेवल पता चलता है उसमें से कि कितने माइक्रोन का आपने फिल्टर लगाया है। अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई एरिया है वहाँ काफ़ी डस्ट है और आपने 10 माइक्रोन का या 5 माइक्रोन का फिल्टर लगाया, तो आपका रूम में वो डस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो डस्ट का माइक्रोन का मतलब जो उसका विड्थ और उसका जो साइज रहता है वो 5 माइक्रोन से बड़ा रहता है, 10 माइक्रोन 15 माइक्रोन 20 माइक्रोन उतना रहता है। तो वो जो भी डस्ट रहेगा वो आपके फिल्टर पे अरेस्ट हो जाएगा और प्योर हवा ही आपको रूम में जाएगी। तो ये जो दिख रहा है वो है बेसिकली एक एएचयू। और उसके आगे जो दिख रहा है, जो सिल्वर कलर में दिख रहा है, वो डक्ट्स है, उस पे इंसुलेशन चढ़ा है, तो डक्ट के थ्रू आपके रूम में हवा दी जाएगी। तो अभी आगे हम लोग आपको दिखा, मैं बताता हूँ आपको। ये जो दिख रहा है, जो फर्स्ट जो आपने देखा एएचयू और दूसरा दिख रहा है वेंटिलेशन, ये एएचयू है। इसका बेसिक मतलब है जो एएचयू है, एयर हैंडलिंग यूनिट, इट इज यूज फॉर गिविंग कंफर्ट और डिजाइन पैरामीटर्स इन द रूम और इन द एरिया। मतलब एएचयू के अंदर आपको कॉयल आएगी, कूलिंग कॉयल आएगी, हीटिंग कॉयल आएगी, या जो हीटर्स आते हैं। और आपका जो वेंटिलेशन एरिया में सिर्फ ब्लोअर, मोटर और फिल्ट्रेशन, जो आपको ये दिख रहा है बाहर, वो फिल्टर्स है। वो है आपके 10 माइक्रोन के फिल्टर्स, जो भी आपका फ्रेश एयर फिल्टर होके आपका ब्लोअर के थ्रू, उसको ड्राफ्ट वेंटिलेशन बोलते हैं, वी एफडीवी बोलते हैं उसको, फोर्स ड्राफ्ट वेंटिलेशन। मतलब रूम के अंदर फोर्सफुली हवा डाली जाती है कि जो भी आपका रूम में जो स्मोक पैदा हो रहा है या कोई भी ऐसे कंपोनेंट पैदा हो रहे हैं जो आपको वर्किंग एनवायरनमेंट में आपको दिक्कत दे रहा है, तो उसे हमें फोर्सफुली ड्राफ्ट वेंटिलेशन के थ्रू उसे बाहर निकालना है। तो उस केस में आपका एसीपीएच जो रहता है, एयर चेंजिंग पर आवर, वो ज़्यादा रहता है कि आपके 1 घंटे में 50 बार, 20 बार, 30 बार हवा आपकी बदलती है। तो जो फ्रेश एयर आपका बाहर का है वो हम लोग सक करके थ्रू ब्लोअर आपको रूम में हवा देते हैं, दैट इज फिल्टर्ड एयर। और जो रूम में आपके जो प्रोसेस हो रहा है, जिसमें आपका स्मोक पैदा हो रहा है या आपका कुछ ऐसे गैसेस पैदा हो रहे हैं दैट इज हार्मफुल फॉर द ऑपरेटर और वर्किंग का एनवायरनमेंट, उसे हम लोग फोर्सफुली बाहर निकालते हैं थ्रू वेंटिलेशन एचओ। और एयर हैंडलिंग यूनिट में सेम प्रोसेस रहता है, और उसमें कूलिंग होता है, जैसे कि कूलिंग कॉइल इंट्रोड्यूस होती है, हीटिंग कॉइल इंट्रोड्यूस होती है, हीटिंग कॉइल फॉर आरएच एंड कूलिंग कॉइल फॉर टेम्परेचर। अब ये एक सिमेट्रिक डायग्राम है एयर हैंडलिंग यूनिट का, जो आपने वो ब्लू कलर का देखा, वो आपको एक मैं दिखा रहा हूँ। उसमें पहला रहता है कि आउटडोर एयर, जो आपका फ्रेश एयर है। उसके बाद आपके फिल्टर्स आते हैं, जो मैंने बताया, जो फ्रेश एयर से जो फ्रेश
फर्स्ट फिल्ट्रेशन होता है वो 10 माइक्रोन का फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद वो 10 माइक्रोन की जो फिल्टर्ड हुई हवा आपके कॉइल के थ्रू पास होती है। तो कॉइल के थ्रू जब पास होती है तो वहाँ हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस होता है। अभी आप बोलोगे कि तू सब कौन कर रहा है कि कॉइल के थ्रू वो हवा कैसे पास होगी, तो होता क्या है, ये जो ब्लोअर रहते हैं, जो फैन बोलते हैं हम उसको, वो इस तरह के डिजाइन होते हैं कि वो आपका सेम टाइम में खींचेगा भी, सक्शन भी करेगा और डिस्चार्ज भी करेगा। वो इस टाइप के फैन, उसे बोलते हैं DIDW फैन, डबल इनलेट डबल विड फैन। तो उसमें ये फैन ऐसे रहते हैं, ये सब फैन आते हैं आउट ऑफ इंडिया से ही आते हैं, मोस्टली जर्मनी वगैरह साइड से। तो ये फैन में ऐसी खासियत रहती है, तो एट ए टाइम वो सक भी करेगा और फेंकेगा भी। तो उसमें जो सक होता है, वो जो नेगेटिव प्रेशर के वजह से आपका फ्रेश एयर फिल्टर्स के थ्रू पास होने के बाद, कॉइल के थ्रू पास होने के बाद वो फैन के थ्रू रूम में चले जाता है। तो आपने ये देखा कि आपका फिल्टर है, कॉइल है, फिर उसके अंदर आपके ब्लोअर मोटर सेक्शन है, और उसके बाद डक्ट्स के थ्रू हम लोग सप्लाई करते हैं रूम में। अभी रूम में हमने हवा सप्लाई कर दी, फिर रूम में ऐसे कंपोनेंट्स लगाते हैं जैसे डिफ्यूजर्स वगैरह, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उससे वो रूम में हवा इंट्रोड्यूस होती है, फिर रूम में जो कंफर्ट होता है, उसके बाद जो हॉट एयर है, जो कंटामिनेटेड एयर है, वो रिटर्न, मतलब जो रिटर्न डक्ट के थ्रू वो पाथ से रिटर्न आती है, और फिर ये मशीन के अंदर इंट्रोड्यूस होती है। तो सबसे मेन रहता है कोई भी मशीन में फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस करने का बेसिक रीज़न है कि आपका जो एरिया है उसमें कंफर्ट महसूस होना चाहिए। क्योंकि अगर सेम ही हवा जो आपकी हम लोग ठंडा करके भेज रहे, तो आपको एक अलग काइंड ऑफ सफोकेशन महसूस होगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएंगे आपके। उसके लिए 10% जो भी हवा रहती है वो आपको फ्रेश एयर लेनी है सिस्टम में, और 90% आपका रिसर्कुलेटिंग रहता है इन केस ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट्स। ये आपका ब्लोअर और मोटर अरेंजमेंट है। इसमें में आप देखोगे तो बेल्ट ड्रिवन मोटर है, जिस पुली के थ्रू बेल्ट ड्रिवन मोटर्स है। दूसरे भी मोटर ब्लोअर सेक्शन आता है, दैट आर नोन एज प्लग फैन, जिसमें ये तो बेल्ट ड्रिवन है, वो डायरेक्ट ड्रिवन रहता है, उसका शाफ्ट कपल्ड रहता है, मोटर और फैन का शाफ्ट कपल्ड रहता है। फिर ये आपके फिल्टर्स है, जैसे आप फाइन फिल्टर्स देख रहे हैं, हेपा फिल्टर। भी फाइन फिल्टर आर ऑफ 10 माइक्रोन्स, प्री फिल्टर्स आर ऑफ 10 माइक्रोन, फाइव फिल्टर्स आर ऑफ 5 माइक्रोन्स, और हेपा फिल्टर, हेपा का फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट अरेस्ट। मतलब 0.3 माइक्रोन का ही पार्टिकल वो पास करेगा, उससे बढ़कर पार्टिकल रहेगा 1 माइक्रोन का, या 5 माइक्रोन का, या 2 माइक्रोन का, या 0.5 माइक्रोन का भी पार्टिकल जो रहेगा, या हवा रहेगी, जो हवा में पार्टिकल्स रहते हैं वो पास नहीं करेगा। तो हेपा फिल्टर्स बेसिकली ऐसे एरियाज में रखते हैं जैसे कि आपका ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा हो, जहाँ सबसे ज़्यादा प्योर एयर की ज़रूरत रहती है। क्योंकि हम लोग पेशेंट को मतलब ओपन हार्ट कर, मतलब उसका एक ऑपरेशन कर रहे हैं, जहाँ आपका कोई भी कंटामिनेशन अगर बॉडी के अंदर चले गया तो आगे प्रॉब्लम आ सकता है। फिर दूसरा जगह ये यूज होता है जहाँ आपके क्रिटिकल्स एरिया है, जैसे आपका इंजेक्शंस बन रहे हैं, आपके वाइल्स बन रहे हैं, आपके एम्प्यूल्स बन रहे हैं, आपका जो ड्राई पाउडर्स बन रहा है, जैसे जो रॉ मटेरियल रहता है, पैरासीटामोल का हो गया, या कोई भी और भी मेडिसिन आप देखोगे, विटामिन सी के मेडिसिन, एड्स का मेडिसिन बनता है, कैंसर के मेडिसिन बनते हैं। तो काफ़ी क्रिटिकल एरिया जहाँ होते हैं वहाँ ये हेपा फिल्टर इंट्रोड्यूस होता है। तो जो आपका हवा सप्लाई होएगा थ्रू डक्ट्स, वो हेपा फिल्टर के थ्रू रूम में पास होगा। तो जब वो हेपा फिल्टर के थ्रू रूम में पास होगा, तो आपका कोई भी 0.3 माइक्रोन का ही पार्टिकल्स वो आपका रूम में आएगा। बाकी जितने भी हैजार्डियस पार्टिकल्स है वो आपके रूम्स में नहीं आएंगे। फिर दूसरा मेन कंपोनेंट है, जैसे कि ये आप कॉइल देख रहे हैं, ये है फिन्स और ट्यूब वाली कॉइल्स है, जिसके थ्रू आपका मतलब फॉर एग्जांपल अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं तो रेफ्रिजरेंट पास होता है, वो DX सिस्टम बोलते हैं उसको, दैट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपांशन सिस्टम। और दूसरा होता है चिल्ड वाटर सिस्टम, या चिल्ड वाटर भी यूज कर सकते हैं, या ब्राइन भी यूज करते हैं। तो उसमें मेन रहता है कि जो आपका सक्शन लाइन है, जो नीचे आप देखोगे एक हेडर पे एक कनेक्शन दिख रहा है, वहां से आपका 7 डिग्रीज पे पानी कॉइल के अंदर रन होता है,
और उसका जो आउटलेट लाइन है, वो जो डिस्चार्ज लाइन है, वहाँ 12 डिग्रीज पे पानी बाहर निकलता है। जो डेल्टा टी जो रहता है वो 5 डिग्री का रहता है इन केस ऑफ इवोपरेशन। तो ये कॉइल जो रहती है इवोपरेटिंग कॉइल बोलते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका रेफ्रिजरेंट है या आपका चिल्ड वाटर है, वो कॉइल मतलब ट्यूब्स के अंदर, जो कॉपर ट्यूब्स आप देख रहे हैं उसमें फ्लो होता है। और जो आपका फिन्स है उसके ऊपर से आपकी हवा फ्लो होती है। जब वो हॉट एयर है या अनकंडीशनड एयर है, जब वो कॉइल के थ्रू पास होगी तो वहाँ हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस होगा, जैसे आपको मैंने पहले बताया। तो उसके वजह से आपका ये कॉइल में जो 7 डिग्रीज पे पानी जा रहा है, 12 डिग्री पे पानी जो बाहर आएगा, तो वो जो डेल्टा टी 5 का रहता है, डेल्टा टी जो रहता है 5 डिग्री सेल्सियस का रहता है, वो आपका उतना हमने हीट एक्सचेंजिंग किया, हमें इससे पता चलता है। फिर ये जो रहते हैं एसी के डक्ट्स, डक्ट्स का मटेरियल जैसे है जीआई का बनता है डक्ट, जो बेसिकली हर एक इंडस्ट्री में आप देखोगे, कमर्शियल हो या कंफर्ट एरिया हो, वहाँ इसका जीआई का गैल्वेनाइज्ड आयरन का डक्ट्स बनता है। अगर आप देखोगे कोई बड़े बॉयलर्स वगैरह रहते हैं, वहाँ एमएस के डक्ट्स बनते हैं, क्योंकि वो बॉयलर को जो उसके हैजार्डियस केमिकल्स और उसके गैसेस है, वो आपके जीआई के साथ मैच नहीं होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके वजह से वहाँ एमएस के डक्ट्स लगते हैं। अगर आप हॉस्पिटल्स में देखोगे कोई क्रिटिकल एरिया, वहाँ कॉपर का भी डक्ट्स लगता है। अभी डक्ट होता है आपका मेन पर्पस, जैसे कि आप पाइपलाइन करोगे, उसमें पानी पाइप्स के थ्रू जाएगा। तो एचवीएसी में जो रहता है मेन रहता है डक्ट। जो अभी एयर हैंडलिंग यूनिट ने हवा प्रोड्यूस की, वो भी रूम तक लेके जाने का जो जरिया है, जो रोड है या जो पाथवे है, वो डक्ट के थ्रू वो एयर पास होती है रूम में। ठीक है, तो डक्ट्स काफी साइज मतलब टाइप के रहते हैं, जैसे जीआई के डक्ट रहते हैं, एमएस के डक्ट रहते हैं, एसएस के डक्ट्स रहते हैं। अभी कुछ कुछ जैसा अभी मार्केट इवॉल्व हुआ है, तो डक्ट्स पे हम लोग इंसुलेशन करते हैं, क्योंकि जब डक्ट के अंदर ठंडी हवा रहती है, दैट इज अराउंड 25 डिग्री और 23 और 22 डिग्री का हवा रहता है, तो डक्ट का मतलब जो उसका मेटल सरफेस के साथ आउटसाइड का एयर कांटेक्ट में आता है, तो अंदर आपका डक के अंदर ठंडा हवा है, और उससे कंपेयर में आप बाहर का टेम्परेचर देखो वो ज़्यादा है। तो जब वो दोनों टेम्परेचर आपस में मतलब मिसमैच होता है, तो वहाँ कंडेंसेशन फॉर्म होता है। कंडेंसेशन जब आपका फॉर्म होता है, तो वहाँ मेटल करोड होना चालू हो जाता है। तो उससे बचने के लिए, और आपका जो डक के अंदर जो हम चाहते हैं कि 20 डिग्री का या 18 डिग्री का या 25 डिग्री का या एक्स डिग्री का जो भी टेम्परेचर हमने एयर हैंडलिंग यूनिट्स के थ्रू बनाया है, वो रूम में जाएगा, तो उसके लिए हमें इंसुलेशन लगाना पड़ता है। इंसुलेशन इज नथिंग बट काइंड ऑफ थर्मोकोल, और जैसे हम लोग थर्मोडायनामिक्स में देखते हैं, उसका के वैल्यू जो रहता है, अगर जितना आपका हीट ट्रांसफर मतलब कोएफिशिएंट अगर ज़्यादा है, तो वो हम लोग वो मेटल मतलब जो मेटल पे हम लोग ने जो इंसुलेशन लगाया, तो इंसुलेशन का मतलब है कि जो आपकी आउटसाइड एयर है और जो इनसाइड एयर है, उसके बीच में वो एक पाथ बन जाता है कि उधर आपका हीट एक्सचेंज प्रोसेस नहीं होगा। तो आप देखोगे जो आपके जितने भी फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर्स है, या आपके जो भी थर्मस वगैरह के बॉटल्स आते हैं, उसको आप अगर बॉटल काटोगे, तो एक इनर लेयर रहेगा, उसके बाद एक पफ का इंसुलेशन या थर्मोकोल का इंसुलेशन रहेगा, और उसके बाद एक आउटर लेयर रहेगा। तो आपका जो गर्म पानी रहेगा या ठंडा पानी रहेगा, वो उसी में ठंडा रहता है। उसका बेसिक रीजन है कि उस पर इंसुलेटेड है वो सरफेस। तो डक्ट पे ये इंसुलेशन की जाती है। ये तो मेटल डक्ट्स होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, राउंड शेप में। फिर फ्लेक्सिबल डक्ट्स रहते हैं, फिर प्री इंसुलेटेड डक्ट्स मिलते हैं मार्केट में। तो ये सब आपको डक्टिंग में ध्यान देना है। मतलब डक्टिंग जब आप करोगे, तो आपको ये सब चीज़ देखना है कि आपको कौन से डक्ट लेना है, आपका पर्पस क्या है। तो बेसिकली जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं वो है प्री इंसुलेटेड डक्ट और जीआई के डक्ट, वो सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ होते हैं। फिर ये आपके डैम्पर्स रहते हैं, जो वॉल्यूम वीसीडी बोलते हैं उसे, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर। अभी ये कहाँ लगता है, जो आपके एयर हैंडलिंग यूनिट्स में आप देखोगे, तो एयर हैंडलिंग का जो सक्शन लाइन है, जो मतलब हवा जहाँ से खींचता है और जहाँ से फेंकता है जो पाथ पे, ये काइंड ऑफ एक वॉल है। जैसे अपना नल रहता है कि हमको इतना ही वॉल्यूम चाहिए, तो हम लोग उसको हाथ से मॉड्यूलेट करते हैं। तो जब हवा हमें मॉड्यूलेट करनी है, तो ये डैम्पर्स के थ्रू हवा जाती है रूम में,
तो ये डैम्पर्स को आप जितना वॉल्यूम पे आप सेट करोगे, ये आपका डक्ट का एक एरिया है, तो आपका ये जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू ए वी, क्यू जो है आपका जो हवा जानी है दैट इज नोन एज CFM, क्यूबिक फीट पर मिनट उसका यूनिट है। तो V इज इक्वल टू आपका जो वेलोसिटी है और ए आपका एरिया है। एरिया बोले तो डक्ट का एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्या वेलोसिटी से आपकी हवा जानी है। तो आपको एक वैल्यू आती है कि फॉर एग्जांपल हमें एक एक्स अमाउंट ऑफ हवा रूम में डालनी है, पर अगर आपका वॉल पूरा खुला है तो x+10 का हवा रूम में जा रहा है, तो हमें तो x का हवा डालना है। तो उस केस में हम लोग ये जो डैम्पर है उसको मैन्युअली एडजस्ट करेंगे और एक इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हम जो रूम में हवा भेजना चाहते हैं वो उतना हवा जा रहा है कि नहीं। तो उससे जब हम वो डैम्पर को मॉड्यूलेट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो x+10 का हवा जा रहा था वो x+1 जा रहा है अभी, फिर बाद में जैसा आप और मॉड्यूलेट करेंगे तो x का हवा जा रहा है, तो इतना सर्टन अमाउंट ऑफ एयर इज गोइंग इन योर एरिया। तो ये एक वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर रहता है। फिर ये आपके क्लीन रूम्स में जो लगते हैं, जो सप्लाई में लगता है वो है हेपा फिल्टर्स, जो आप देख सकते हैं। और रिटर्न में जो लग रहा है वो राइजर्स रहते हैं। राइजर्स इज नथिंग बट एक काइंड ऑफ डक्ट है जो रूम में लग रहा है आपका, जिससे आपकी जो रूम की हवा है, जो आपके हेपा के थ्रू हवा आई रूम के अंदर, उसने जो भी है हीट एक्सचेंज किया, हीट एब्जॉर्ब किया, और जो हॉट एयर है वो राइजर के थ्रू फिर से सिस्टम मतलब मशीन में जाएगी वापस से कूल होने को। ये कब यूज होता है राइजर और हेपा पिक्चर में, कब आते हैं जहां आपका रिसर्कुलेटिंग सिस्टम हो, कि जो रूम में हवा गई फिर वो रूम से आई हवा उसे फिर हमें ठंडा करना है, फिर रूम में भेजना है, फिर रूम से लाना है। उस केस में हेपा और राइजर सबसे मेन काम करते हैं। राइजर इज नथिंग बट कोई एक ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, वो एक कंपोनेंट है जो रिटर्न आपकी हवा रूम से लेके जाएगा। फिर ये आपके जो कंफर्ट एरिया में आपने देखे रहेंगे, जैसे आप मॉल्स में जाते हैं या एयरपोर्ट्स पे गए रहोगे या कोई भी कमर्शियल मतलब कंपनीज वगैरह देखो, तो आपको ये सब दिखेंगे। ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये भी एक काइंड ऑफ मतलब आपका रूम में हवा देने के लिए बना जाता है, जैसे डिफ्यूजर्स बोलते हैं, ग्रिल्स बोलते हैं। तो इसमें मेन क्या रहता है कि जो आपका डक्ट के थ्रू हवा जो आ रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। 4 वे डिफ्यूजर्स आते हैं, जैसे आप देखोगे ये आपका डिफ्यूजर है, फिर ये ग्रिल्स रहते हैं, उसके थ्रू हवा रूम में आती है, और फिर ग्रिल्स के थ्रू ही आपका रूम से हवा रिटर्न जाती है। फॉर एग्जांपल अभी कब आप कोई एरिया में जाओगे तो आपको आइडेंटिफाई कैसा होगा कि ये जो डिफ्यूज़र या जो ग्रिल लगी है वो हवा दे रही है या हवा ले रही है, क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे, अगर आपके हाइट के रीच में रहेगा तो आप हाथ से महसूस कर सकते हैं, या आप कोई धागा या आपका जो हैंकरचीफ लगा के देख सकते हैं। अगर हवा फेंक रहा है तो वो आपकी तरफ फेंकेगा, और अगर सक कर रहा है तो वो नेगेटिव प्रेशर के थ्रू चला जाएगा। अगर कोई हाइट पे है एरिया तो उस केस में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो रूम में एयर रहती है वो रूम का जो डस्ट वगैरह लेके जाती है, जो तभी आपको पता चलेगा कि कोई भी आपका रिटर्न मतलब डिफ्यूजर होगा या ग्रिल होगा या कोई भी रिटर्न पाथ रहेगा उस पर काफ़ी डस्ट एक्यूमुलेट हुआ रहेगा, और सप्लाई में वो जो डिफ्यूजर या आपका ग्रिल रहेगा वो काफ़ी क्लीन रहेगा, क्योंकि वो क्लीन एयर रूम में आ रही है और रूम का डस्ट वगैरह जो सारा चीज़ है वो आपका रिटर्न के थ्रू रूम से बाहर जा रहा है। फिर आप देखोगे ये जो कन्वेंशनल एयर कंडीशन मतलब कंडेंसिंग यूनिट बोलते हैं, जो आपके घर पे भी लगा रहेगा, वो आपको पता है। फिर ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स है जिसमें हमने किया था काम। इसमें आप ये देखोगे एयर हैंडलिंग यूनिट्स विद कंडेंसिंग यूनिट, मतलब ये हमने एयर हैंडलिंग यूनिट को जो उसके कॉइल्स है उसको कंडेंसिंग यूनिट के साथ हमने क्लब किया है, कि जो आपका रूम में जो इवोपरेशन कॉइल रहता है उसको हम लोग ने एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर डाल दिया, और उससे हमने एयर वगैरह पास करके रूम में दिया। ये कहाँ यूज होता है, जहाँ आपका काफी बड़ा CFM हो। अभी मैं जो CFM वर्ड बोल रहा हूँ वो बेसिकली कुछ नहीं है, एक आपका हवा का यूनिट है। जैसे प्रेशर का यूनिट है पास्कल, टेम्परेचर का यूनिट है डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन, वैसे एयर का जो यूनिट है वो है CFM, क्यूबिक फीट पर मिनट। अभी आपका कोई भी एरिया है उसका एक खुद का वॉल्यूम रहता है,
अभी ये वॉल्यूम में कितना हवा रहेगा वो अपने को डिसाइड करना है, और ये जो हवा रहेगा वो कितना कूलिंग चाहिए, या आपका क्या टनेज चाहिए रूम में जो आपको कंफर्ट महसूस करवा सकता है, और या आपका जो भी प्रोडक्ट है उसमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए जो एयर हैंडलिंग यूनिट से जो हवा निकलती है उसे सीएफएम के रूप में बोला जाता है। कि कोई भी पूछेगा कि ये एरिया में कितना सीएफएम चाहिए, तो वो बेसिकली आपको ये पूछ रहा है कि ये रूम में कितना एयर चाहिए, एयर क्वांटिटी कितनी चाहिए। 500 सीएफएम चाहिए, 10,000 सीएफएम चाहिए, 20,000 चाहिए, 100 सीएफएम चाहिए, वो आपको बेसिकली वो पूछ रहा है। तो आपको ये देखना है कि जैसे एयर हैंडलिंग यूनिट को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं विद कंडेंसिंग यूनिट, इंटीग्रेट कर सकते हैं विद चिलर्स, इंटीग्रेट कर सकते हैं, या आपके चिलर्स में भी काफ़ी 3 टाइप के चिलर्स है। जैसे आपका होता है एयर कूल्ड चिलर्स होते हैं, वाटर कूल्ड चिलर्स होते हैं, फिर दूसरा आता है वैम मशीन, वेपर एब्सॉर्प्शन मशीन, दैट इज लिथियम ब्रोम वीक सॉल्यूशन ऑफ लिथियम ब्रोमाइड का जो वीक सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के थ्रू वो चिलर यूज होता है। तो ये 3 टाइप के आप चिलर यूज कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट के साथ। तो एयर हैंडलिंग यूनिट्स में बेसिकली ये जितने भी इंटीग्रेशन होते हैं दे आर रिस्पेक्टिव विथ कॉइल्स, बाकी जो कंपोनेंट कुछ भी चीज नहीं होता है, खाली आपका जो कॉइल्स पे इंटीग्रेट किससे कर रहे हैं, कि कॉइल के थ्रू रेफ्रिजरेंट पास होने वाला है, या आपके कॉइल के थ्रू ब्राइन पास होने वाली है, या चिल वाटर पास होने वाला है, वो डिपेंड करता है आपके जो सेकेंडरी सिस्टम से, जैसे कि आपके कंडेंसिंग यूनिट है या चिलर्स है, उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका कॉइल में पानी जा रहा है या रेफ्रिजरेंट जाने वाला है। ये देखो, देख रहे हैं आप, ये है चिलर, ये यॉर्क कंपनी का चिलर है। तो अभी आप कभी कोई इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है जो आपका वीसीसी मतलब वेपर कंप्रेशन साइकिल पे ही ये चिलर वर्क होता है। तो इसमें आपको, अगर आपको इंडस्ट्री में गए और आपको पता नहीं है कि ये चिलर है, वो आपको पता है पर आपको ये नहीं पता इसमें कंप्रेसर कौन सा है, कंडेंसर कौन सा है, इवोपरेटर कौन सा है, इसमें एक्सपांशन वाल्व कहाँ है। तो सबसे बेसिक देखना है कि आपका जो भी, अभी ये आप देख रहे हो ये शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है, मतलब चिलर है। तो उसमें जो आपका ये जो बड़ा सा पाइप दिख रहा है, अगर वो इंसुलेटेड है तो उसको आप कभी भी देखना वो इवोपरेटर रहेगा, और वो काफी बड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू दूसरा जो आपका शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर रहेगा, और वो अनइंसुलेटेड रहेगा। जो अनइंसुलेटेड रहेगा वो कंडेंसर रहेगा, और जो इंसुलेटेड रहेगा वो आपका इवोपरेटर रहेगा। फिर आपका कंप्रेसर्स आते हैं, तो कंप्रेसर के उधर आपको फिन्स वगैरह दिखाई देगी, तो वो आपका कंप्रेसर है। अभी कंप्रेसर भी काफी टाइप्स के आते हैं, जैसे स्क्रॉल कंप्रेसर आते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आते हैं, स्क्रूड कंप्रेसर आते हैं। तो वो स्पेसिफिकेशन आपको उसके मैनुअल में या उसके जो मतलब मशीन पे लिखा रहेगा कि ये स्क्रॉल कंप्रेसर है, या ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, या ये स्क्रू कंप्रेसर है। अभी मेन क्या रहता है, आपको रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसे आपने देखा रहेगा कि अपने आईसी इंजन में जो रहता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो रहता है, वैसा आपको सेम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिखेगा। तो आपको समझ जाएगा कि ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। अगर स्क्रूड कंप्रेसर है और आपका स्क्रॉल कंप्रेसर है, उसको आइडेंटिफाई करने के भी काफ़ी मतलब है। वो आपको मतलब आगे जैसा आप इंडस्ट्री में आप जाओगे, आप उसका एक्सपीरियंस लोगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि स्क्रू कंप्रेसर कैसे दिखते हैं और स्क्रॉल कंप्रेसर कैसे दिखते हैं। फिर ये जो है चिलर्स है, चिलर्स के लिए अभी चिल वाटर पंप्स रहते हैं, और वाटर कूल्ड चिलर जो आपके स्क्रू चिलर है। अभी आप ये देखोगे कि तो इसमें जो आप ये देख रहे हैं, जो इंसुलेटेड पार्ट दिख रहा है आपको, वो आपका कंप्रेसर भी है। और ये जो पीछे साइड में आपको एक शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर दिख रहा है, वो आपका कंडेंसर है, पर उसको इंसुलेशन नहीं लगा है। और जो पहले इवोपरेटर है उसे भी इंसुलेशन लगा है, पर उसको पेंट किया गया है, क्योंकि वो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी जाके आप देखोगे ना, तो आपको एक दिखने में भी अच्छा दिखना चाहिए। आपका जो ये प्लांट रूम है वो शैबी नहीं दिखना चाहिए, या पानी टपक रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए उन लोग उस पर इंसुलेशन चढ़ा के उसको पेंट करते हैं। फिर आपके पंप्स रहते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स रहते हैं। जो आपके एयर कूल्ड चिलर रहेगा उसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप्स वगैरह का कोई भी काम नहीं है। और आपका जहाँ वाटर कूल्ड चिलर्स आ गए, वहाँ आपके कूलिंग टावर्स आएंगे, वहाँ आपके पंप्स आएंगे, वहाँ आपका चिलर्स आएगा, आपके पाइपलाइंस आएगी, आपकी यूटिलिटीज आएगी, ये सारा चीज़ आपका तब इंट्रोड्यूस होगा।
ये जो आप देख रहे हैं वो है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर बेसिकली क्या रहता है, आपने कई बिल्डिंग्स पे या आपने कोई कमर्शियल एरिया में आप गए हो या कोई फैक्ट्री विजिट किया रहेगा, वहाँ ये कूलिंग टावर। अभी कूलिंग टावर के अपने अपने पर्पसेस है। इसमें भी जो डेल्टा टी रहता है वो फाई का रहता है कि आपका 32 डिग्री मतलब 36 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी ऊपर से नीचे गिरता है। उसके अंदर फिन्स रहते हैं, फिर उसके अंदर सेंडेक पैड रहते हैं। सेंडेक पैड इज बेसिकली आपके जो आपके कूलर्स वगैरह पे जो घास वाला जो दिखता है वो कुछ नहीं है, वो सेंडेक पैड बोलते हैं उसको, सेंडेक पैड। उसके थ्रू अगर पानी जा रहा है धीरे धीरे और ऊपर एक फैन रहता है, तो उसके थ्रू आपका हीट एक्सचेंज होता है। तो जो आपका पानी चिल मतलब कूलिंग टावर में जाता है वो 36 डिग्री पे जाता है, और आउट उसका जो निकलता है वो आपका जाता है 32-31 डिग्री पे। तो डेल्टा टी 4-5 का उन लोग मेंटेन रखते हैं, कोई भी आप कूलिंग टावर में देखोगे तो ये कूलिंग टावर एक कंपोनेंट है। तो जैसे कि आपने देखा, कूलिंग टावर रहता है, आपका चिलर रहता है, और आपका एयर हैंडलिंग यूनिट रहता है। ये एक पूरा इंटीग्रेशन आपका है चिल वाटर विथ एज। फिर दूसरा आपने मैं जो आपको दिखाया था कि कंडेंसिंग यूनिट थे जिसमें कॉपर पाइपिंग वगैरह था, और उसके साथ एएचओ, तो वो डीएच सिस्टम बोला जाता है, और ये चिल्ड वाटर सिस्टम बोला जाता है। जैसा आप ये देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम आपके सामने भी दिख रहे हैं वो डीएच सिस्टम है, जिसमें रेफ्रिजरेशन पाइपिंग आ गए, आपके कंडेंसिंग यूनिट आ गए, आपका एयर हैंडलिंग यूनिट वही है, पर आपकी जो कॉइल डिजाइन होगी वो डीएच सिस्टम के हिसाब से डिजाइन होगी। और जब आप जो चिल वाटर सिस्टम्स में जाओगे तो उसमें आपको एक तो डिजाइन होगा, कॉइल भी चिल वाटर के हिसाब से डिजाइन होगी। उसमें ये सारे कंपोनेंट्स आएंगे, जैसे कि चिलर्स आएगा, आपके पंप्स आएंगे, फिर आपका कूलिंग टावर आएगा। ये सब आपको डिजाइन करना है उस केस में। फिर दूसरा आता है सबसे मेन जो आजकल दिख रहा है, जैसे कि हम लोग पीपी किट्स वगैरह पहन के देखे रहेंगे डॉक्टर्स को, या जहाँ सब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आर एन डी सेंटर्स रहते हैं, वहाँ एचवीएसी सिस्टम का सबसे ज़्यादा महत्व है। अभी आप ये जो सामने देख रहे हैं वो है एक क्लीन रूम। क्लीन रूम है जहाँ मतलब आपका काफ़ी सारे पैरामीटर्स को मेंटेन रखना पड़ता है। सबसे बेसिक पैरामीटर्स जैसे टेम्परेचर, आरएच, ठीक है। उसके बाद दूसरे आते हैं प्रेशर, उसके बाद आपका प्योरिटी आती है। फिर वो एरिया में आप जाओगे तो वो एरिया आपको बाकी एरिया से अलग दिखेगा, क्योंकि उसमें जो नीचे फ्लोरिंग की जाती है वो इपॉक्सी फ्लोरिंग की जाती है। इपॉक्सी फ्लोरिंग करने का बेसिक रीजन है कि आपका नॉर्मल फ्लोरिंग है ना कुछ पार्टिकल एमिट करता है। जो आपके रूम में वो पार्टिकल अगर हवा के कांटेक्ट में आ गया तो वो आपका जो कंटामिनेशन हो सकता है एयर का, तो उसके लिए इपॉक्सी फ्लोरिंग की जाती है। और उसके वजह से कोई भी आपका पार्टिकल वो इपॉक्सी फ्लोरिंग के थ्रू पास भी नहीं होगा, और वो इपॉक्सी फ्लोरिंग कुछ रिएक्ट भी नहीं करेगा वो पार्टिकल को, मतलब या एयर के जब कांटेक्ट में अगर इपॉक्सी फ्लोरिंग आ रहा है तो वो कोई भी पार्टिकल लेके नहीं जाएगा। तो इपॉक्सी फ्लोरिंग लगाने का आपको कोई भी क्लीन रूम में जाओगे तो आपको एचवीएसी दिखेगा, क्लीन रूम दिखेगा, और वो एरिया में आप ऐसे ही नहीं जा सकते। यू हैव टू गो थ्रू ओवर गाउनिंग। जैसे आपका खाली आंख दिखेगा, आपका हाथ में ग्लव्स रहेगा, पैर में बूटी रहेगी, ऊपर पीपी किट रहेगा, तो ये सब चीज़ आपको क्लीन रूम में दिखेगा। तो क्लीन रूम में बेसिकली एचवीएसी सबसे ज़्यादा यूज होता है। वहाँ आप नॉर्मल एसी या आपको ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं दिखा देगा। तो ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स है जो मैंने किए थे, उसमें ये आप देखोगे जो फर्स्ट है उस पे इपॉक्सी कोविंग की है, मतलब इपॉक्सी फ्लोरिंग की है। जो बीच में आपको दिख रहा है पार्टीशन पैनल जो दिख रहा है वो एंटी कैंसर और एंटी एड्स एरिया है। मतलब ये काफ़ी क्रिटिकल एरिया है जहाँ मतलब ऐसे नॉर्मल मतलब जैसे आपके कोई लेबर या आपके कोई ऑफिस स्टाफ नहीं जा सकता है वो एरिया में। जाने के लिए आपको प्रॉपर परमिशंस वगैरह का जरूरत, क्योंकि कैंसर का दवाई या एड्स का दवाई भी आपको एड्स और कैंसर कर सकता है। उसके वजह से आप जब ये ऐसे क्रिटिकल एरिया में जाओगे तो आपको ओवर गाउनिंग रहता है और काफ़ी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो क्लीन रूम में इस एरिया में आपको एयर हैंडलिंग मतलब एचवीएसी करना है तो आपको काफ़ी चीज़ों को और काफ़ी कंडीशंस और उसके पैरामीटर्स को काफ़ी सीरियसली देखना है। क्योंकि अगर ये एरिया में आपका कंटामिनेशन एयर गया या कुछ भी गया तो काफ़ी चीज़ों को नुकसान हो सकता है। अगर दवाई में चले गया और वो दवाई आगे हमने कंज्यूम किया
तो उसके वजह से जो भी वो मतलब कॉन्सिक्वेंसेस फेस हो गए वो आपको फेस हो गए, वो कंपनी को फेस हो गए। कंपनी का ऐसे हमने भी देखा है कई जब दफा कि एम्प्यूल फिलिंग हो रहा है या वाइल्ड फिलिंग हो रहा है या इंजेक्शंस हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो उस केस में एक एम्प्यूल में उनको एक हेयर का मतलब बाल दिखा था, तो उनका पूरा कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया था। तो उनके ऊपर काफ़ी केसेस हुए कि आपका मतलब जो अ, आपको प्रिकॉशंस लेने थे जैसे गाउनिंग वगैरह आपने प्रॉपर नहीं किया, तो उनका पूरा कच्चा चिट्टा निकाला गया। फिर बाद में उनको लाइसेंस रद्द हो गया, फिर वो कंपनी को वापस से सब करना पड़ा। तो सबसे मेन ये है कि आपका जो एच लग रहा है और आपको जो भी पैरामीटर्स आपको फॉलो करने हैं वो आपको बहुत सावधानी से फॉलो करने हैं, क्योंकि आपके लिए ये मजाक नहीं है, मतलब ये कोई ऐसा नॉर्मल कंफर्ट जोन नहीं है। जब आप क्रिटिकल एरियाज में जाओगे तो आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के डिजाइन करना है और काम भी उस तरह से करना है। जो आपको मैं बता रहा था रिटर्न थ्रू राइजर, तो ये राइजर्स है, मतलब एक काइंड ऑफ डक्ट ही है। रूम में उसको पेंट किया है, इपॉक्सी पेंटिंग किया, और ये जो ग्रिल दिख रही है इधर से हवा रूम में जाएगी, मतलब ये जो डक्ट है वो आपके रिटर्न साइड में लगा है, जहाँ से आपका ब्लोअर सक कर रहा है वहाँ ये डक्ट लगा रहता है। तो ये रूम का नेगेटिव प्रेशर से आपका रूम से हवा बाहर जाता है। ये क्लास ऑफ क्लीनलीनेस पे आता है। अगर फॉर एग्जांपल अभी आपने पूरी एचवीएसी सिस्टम बिठा दी, एयर हैंडलिंग यूनिट बिठा दिए, रूम्स बना दिए, इपॉक्सी कर दिए, पूरा मस्त एकदम लाइट्स लगा दी, इपॉक्सी फ्लोरिंग हो गई, आपका प्रोजेक्ट हैंड ओवरिंग स्टेज पे आ गया। अभी आपको आता है क्लासिफिकेशंस, जैसे कि काफ़ी डिज़ाइन क्वालिफिकेशंस आपको सबमिट करनी रहती है। इसमें बेसिक 4 रहते हैं, डी क्यू रहता है, आई क्यू रहता है, पी क्यू रहता है और ओ क्यू रहता है। डी क्यू बोले तो डिज़ाइन क्वालिफिकेशंस। तो आपको डिज़ाइन क्वालिफिकेशन ये देना है कि ये कंपनी के लिए XYZ कंपनी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके ये पैरामीटर्स थे, हमने डिज़ाइन में ये सारे पैरामीटर्स को लिया है। फिर आई क्यू बोले तो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, कि जो आपने डिज़ाइन किया है, जो ड्राइंग्स बनाई है, आपने डक्टिंग लेआउट्स बनाए हैं, आपका जो मशीन डिज़ाइन किया है उसको हमने इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉलेशन करते वक्त हमने सारी चीज़ें एज पर डिज़ाइन हमने इंस्टॉल की है कि नहीं की है, तो वो आपको आईक्यू में पता चलेगा, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। फिर आपका आता है ओ क्यू, मतलब ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, कि जो हमने डी क्यू किया मतलब डिज़ाइन किया वो हमने इंस्टॉल किया, अभी इंस्टॉल करने के बाद हम उसको ऑपरेटिंग स्टेज पे लेके जाएंगे। हमने किक किया, AHU चालू किया, फिर रूम साइड में चेक किया कि हवा आ रही कि नहीं, सारा हमने चेक किया। तो ऑपरेशन क्वालिफिकेशंस में ये आता है कि आपके सेफ्टी मेजर्स पता चलते हैं कि आपको ये सेफ्टी रखनी है एट द टाइम ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट, जब आपको ऑपरेटर हैंडल कर रहा है या EHU या HVAC सिस्टम कोई भी हैंडल कर रहा है, तो आपको ये सारे उसमें काफ़ी पैरामीटर्स रहते हैं, वो आपको देखने हैं। फिर ऐसे ही आप जब भी कोई भी मूविंग पार्ट है, मोटर चल रही है, आप सीधा दरवाज़ा नहीं खोल सकते। अगर दरवाज़ा खोला होगा तो आपसे एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑपरेशनल क्वालिफिकेशंस में दिखाई जाती है। और लास्ट आता है वो है PQ, मतलब आपका जो क्वालिफिकेशंस है जिसमें आपके सब जो आपने एयर क्वालिटीज वगैरह सब कुछ परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशंस बोलते हैं उसे। तो आपका जो डिज़ाइन किया था, डिज़ाइन पे आपने बोला कि मेरा 5000 CFM या 10,000 CFM रूम में आएगा, उसमें इतने पार्टिकल्स रहेंगे, इतने अच्छे पार्टिकल्स रहेंगे, वो सारा परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशंस आपका लास्ट में दिखाया जाता है। तो आपके 4 टाइप के ग्रेड्स रहते हैं, जैसे क्लास A B C D। ए और बी जो क्लास रहता है वो आपका LF क्या रहता है, जैसे दैट इज लेमिनार एयर फ्लो। सी क्लास रहता है और डी क्लास रहता है, जिसमें डी क्लास कंफर्ट रहता है और सी क्लास सेमी क्रिटिकल क्लास बोला जाता है। ठीक है। फिर ISO स्टैंडर्ड्स है, उसमें ए को 5 बोलते हैं, ISO 5। फिर बी को 6 बोलते हैं, सी को 7 बोलते हैं, डी को क्लास 8 बोलते हैं, ISO क्लास 8। अभी क्लास के हिसाब से बोले तो क्लास 100 बोल दिया आपने किसी ने कि भाई मुझे ये एरिया में क्लास 100 देना है, तो वो बोल रहा है कि मुझे क्लास ए देना है, मतलब ISO स्टैंडर्ड 5 देना है मुझे। तो ISO स्टैंडर्ड 5 का मतलब ये है कि वो काफ़ी क्रिटिकल एरिया है। आप कभी कोई R&D सेंटर्स में अगर जाओगे, उसमें ऐसे बूथ्स रहते हैं जहाँ सिर्फ आपको हाथ डालना है, वो आप हाथ डाल के एक व्यू पैनल के थ्रू आपको दिखेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो वो जो क्लास रहते हैं वो काफ़ी क्रिटिकल क्लास रहते हैं, वो क्लास ए के अंडर में आते हैं।
क्लास बी के अंडर में आपके आते हैं वाइल फिलिंग होता है, एम्प्यूल फिलिंग्स होते हैं, या आपके जितने भी सिरप के बॉटल्स वगैरह जो फिल होते हैं वो क्लास बी के अंदर आते हैं। फिर क्लास सी के अंडर जो आता है वो आपका प्रोडक्शन एरिया हो गया, जहाँ आपकी दवाई प्रोड्यूस हो रही है, वो भी काफ़ी क्रिटिकल दवाई है। और क्लास डी के अंदर आता है आपका एपीआई, मतलब बल्क में ड्रग बन रहा है। जैसे हमने अभी किया था मेटफॉर्मिन का, दैट इज फॉर डायबिटीज, उसका रॉ मटेरियल उनका टन का टन बनते रहता है। फिर बाद में पैरासीटामोल बनता है, फिर डेरिवेटिव्स करके ड्रग है वो बनता है, तो वो क्लास डी एरिया में। क्यों? क्योंकि वो बल्क में ड्रग बना के दे रहे हैं, फिर आगे उनको उसको कैप्सूल बनाना है या उसको टैबलेट्स बनाना है, वो कंपनी को फिर आगे तय करना है कि उसको क्या बनाना है। तो वो एरियाज में या आपका ऑफिसेज वगैरह रहेंगे जो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर या फूड इंडस्ट्री या क्रिटिकल एरिया में ऑफिसेज रहते हैं, क्यूए क्यूसी ऑफिस जो रहती है, उसमें क्लास डी मेंटेन किया जाता है। तो बेसिकली आपको ये, मतलब मैंने एचवीएसी इंडस्ट्री के बारे में जो बताया, उसमें आपको कोई भी कोई डाउट रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो कुछ भी आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ भी पूछना रहेगा ये इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये इंडस्ट्री काफ़ी कोर मैकेनिकल इंडस्ट्री है। आपको काफ़ी चीज़ें मतलब पता चलेगी, जैसे कि आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि अभी करना क्या है। काफ़ी लोग चले जाते हैं क्यूए क्यूसी में, चले जाते हैं क्वालिटीज़ में, चले जाते हैं कुछ, फिर बाद में आईटी में शिफ्ट हो जाते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अपना फ्यूचर खतरे में है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि एक इंडस्ट्री है एचवीएसी इंडस्ट्री, काफ़ी वास्ट इंडस्ट्री है। इसमें जितना आप इन डेप्थ जाओगे आपको उतना मज़ा आएगा। आपको मतलब पाइपिंग भी मिलेगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं मतलब मार्केट में जो अब देखोगे एमईपी लिखा रहता है, मतलब आप रास्ते पे भी जाओगे तो एमईपी लिखा रहता है, तो दैट इज नथिंग। एमईपी मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पाइपिंग, जो आज हम लोग कर रहे हैं। ये चारों फील्ड एक बंदा कर रहा है, तीनों फील्ड एक बंदा कर रहा है, कि आपको मैकेनिकल का भी नॉलेज मिलेगा, इलेक्ट्रिकल का भी नॉलेज मिलेगा, पाइपिंग का भी नॉलेज मिलेगा, जो आपके फील्ड रिलेटेड है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल पाइपिंग का आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा, तो आपके फील्ड रिलेटेड जो भी नॉलेज आपको लगेगा वो आपको ये फील्ड में मिलेगा। तो एचवीएसी फील्ड में ये है कि मतलब आपको कोर मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर सिलेक्ट करोगे तो आपको काफ़ी ग्रोथ है इंडस्ट्री में। अभी मैं बता रहा हूँ कि इसका स्कोप कहाँ है। जैसे इंडिया में आपको स्कोप है, जैसे फार्मा कंपनीज है, जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, हम लोग जैसे सेटअप्स करके देते हैं बड़े बड़े फार्मा कंपनी को, उधर आपको मिलेगा एज अ डिजाइनर का जॉब मिलेगा। तो इसमें जॉब्स क्या क्या रहेंगे, जैसे पहला रहता है कि ड्राफ्ट्समैन का जॉब रहता है, जो डक्टिंग डिजाइन में मतलब डक्ट बनाता है, ड्राइंग्स जितने भी रहते हैं वो ड्राफ्ट्समैन बनाते हैं। दूसरा आता है सेल्स एंड मार्केटिंग। अभी ये सेल्स मार्केटिंग दूसरे सेल्स मार्केटिंग से अलग है। इसमें कोई टारगेटेड जॉब नहीं रहते हैं जो कॉन्ट्रैक्टिंग फील्ड में रहते हैं, और दूसरे जो प्रोडक्ट्स बेचने में रहते हैं, जैसे एयर हैंडलिंग यूनिट्स बेचना है या ब्लोअर बेचना है, वो सब टारगेटेड जॉब्स रहते हैं। तो उसमें ये रहता है कि आपको जब आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जा रहे हो तो सेल्स आपको प्रोडक्ट सेल्स भी करना पड़ेगा या प्रोजेक्ट सेल्स भी रहते हैं। जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग प्रोजेक्ट सेल्स कर रहे हैं कि हम आपको ये प्रोजेक्ट बना के देंगे, तो उसका हम लोग सेल्स कर रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर दूसरा आता है प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग इंजीनियरिंग, जैसा जो मैं हूँ अभी कर रहा हूँ, जिसमें हमें प्रोजेक्ट्स आते हैं, हमको डिजाइन करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, उनको कमीशन करके पूरा हैंड ओवर करना है। फिर चौथा आता है आपका साइट सुपरवाइजर, जो सबसे मैं मानता हूँ वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं जब मेरा मेरा जो अभी 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसमें मैं 2 ईयर जो था मैं साइट पे था, एज अ साइट सुपरवाइजर साइट इंजीनियर तरीके में साइट पे था। अगर साइट पे जाके कंपोनेंट्स देखोगे, उसके बारे में आपके मैनुअल्स पढ़ोगे, उसका वर्किंग स्ट्रेटेजी पढ़ोगे, कैसा वर्क होता है, कैसा काम होता है, तो आप फिर बाद में जब आप प्लानिंग या डिज़ाइन करोगे तो उस चीज़ को आप रिफ्लेक्ट कर पाओगे। क्योंकि कई दफ़ा मैंने देखा है कि जो प्लानिंग कर रहा है या जो सेल्स कर रहा है उसे पता ही नहीं कि वो इक्विपमेंट कैसा दिखने वाला है। क्योंकि हमने हमारी इंडस्ट्रीज में देखा है कि सर हमको तो पता है कंप्रेसर है, फैन है, ये है, वो है। अभी कभी इंडस्ट्री में चले गए, ऑन साइट चले गए, किसने पूछ लिया भाई कंप्रेसर कहाँ रखा है? नहीं, हमें तो पता है कंप्रेसर होता है, पर कंप्रेसर कैसा दिखता है, कितने टाइप के कंप्रेसर रहते हैं, वो पता नहीं है। तो हम लोग सेल्स या जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए हमें पहले कोर इंडस्ट्री में या कोर ऑन साइट का एक्सपीरियंस लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
तो उसमें आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा, आपके नए नए क्लाइंट्स मतलब वेंडर्स के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, आपको नए नए कंपोनेंट्स मिलेंगे, मार्केट आज क्या देख रहा है, आपको जो बाकी जो एजेंसीज काम कर रहे हैं उसके साथ इंटरेक्शन होगा, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो सब नॉलेज आपको साइड से मिलेगा। क्योंकि ऑफिस में बैठ के आपको वो नॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप ऑन साइट पे जाओगे, जो पेपर पे हुआ आपने एक ऐसा लाइन बना दिया, और वो ऑन साइट पे वो लाइन नहीं बनता है, वो काफी डाइवर्ट हो जाता है कि कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं साइट्स पे। तो मतलब ये फील्ड में ऐसा है कि चैलेंजेस बहुत है, और चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करके उसमें आप ग्रोथ कर सकते हैं। और ये चैलेंजेस ऐसे है कि आपको उसके साथ मजा आएगा काम करने को, आपके जितने भी बेसिक्स जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, फिजिक्स के, वो सब आप इसमें अप्लाई करके आपको मैजिक दिखाई देगा कि हमने ये किया, हमको ये हो जा रहे, ये तो हमको पता था। पर खाली ये है कि एक प्रॉपर पाथ में आप जाओगे तो ये आपको पता चलेगा। तो ये 4 फील्ड में आप अगर आफ्टर मैकेनिकल आप जा रहे हो तो आप इसमें जा सकते हैं। और उसके बाद आप कोर्स भी, मतलब जैसे डेडिकेटेड कोर्सेज है, जैसे मैंने सुविधा से किया था एचवीएसी का। क्योंकि जब मैकेनिकल से आप बाहर निकलोगे फील्ड से, आपके पास सारा नॉलेज है, मतलब आईसी इंजन से लेके थर्मल का है, फिर बाद में आपके पास टॉम सॉम थियरी ऑफ मशीन्स, मटेरियोलॉजी, मेटोलॉजी, ये सब का नॉलेज है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है। पर आपको जाना कहाँ है, वो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि भाई, अभी जैसे कि हमारे टाइम पे था कि सबको गाड़ी बनानी थी, हमें गाड़ी बनाना है, हमें ये बनाना है। बट पहले ये देखना है कि अ, आपको क्या करना है, आपका मतलब स्कोप ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, आपको करना क्या है, वो आपको सबसे पहले पता रहना चाहिए। अभी कुणाल सर ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट एक्स्ट्रा एजुकेशन इज नीडेड टू टेक आफ्टर बी। मतलब आपको फील्ड सिलेक्ट करना है। अभी आप देखोगे ना मार्केट में काफी कोर्सेज है जो आपके फील्ड रिलेटेड कोर्सेज है, और वो आपको इंडियन इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड कोर्सेज है। इसमें आपको मतलब कुछ भी ऐसा मतलब आलतू फालतू चीज नहीं सीखा, जो आज इंडस्ट्री का नीड है वो सिखाएंगे, और वही आपको प्लेसमेंट से या आगे इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि जैसे मैंने किया था सुविधा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजीज में, वहाँ पाइपिंग है, एचवीएसी है, इलेक्ट्रिकल है, ड्राफ्टिंग है। फिर बाद में काफी पार्ट टाइम कोर्सेज भी है उधर। तो आप अगर उधर जाओगे, फिर एक बोरीवली में भी है धनुष करके, वहाँ भी सेम कोर्सेज है। फिर एक डायनामिक करके है अंधेरी एयर साइड में, कहाँ तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, वहाँ भी सेम कोर्सेज है। तो काफ़ी मार्केट में ये कोर्सेज है, अवेलेबल है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है। पहले तो आपको अपना गोल या एम सेट करना है कि भाई मुझे एचवीएसी में जाना है, मुझे क्वालिटी में जाना है, मुझे इसमें जाना है, प्रोडक्ट डिज़ाइन में जाना है, फैब्रिकेशन में जाना है। तो उस हिसाब से आप अपना आगे का जो लाइनअप रहेगा या रोड मैप एक बनाओगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। वरना ऐसा कैसा हो जाएगा, आप ऐसे इंडस्ट्री में चले गए क्योंकि बी हमने किया है, पर आज इंडस्ट्री की जो नीड है वो हमारे पास नॉलेज नहीं है। हमारे पास बेसिक्स है पर हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो हम लोग को जो एक ईगो आ जाता है कि हमने बी किया, वो भी मैकेनिकल किया, तो हमको जॉब मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। वो मार्केट में आज देखोगे तो नहीं है। और वो सिनेरियो कई सालों से जो मतलब चेंज हो चुका है। आपने बी किया पर आपके साथ एक कोई स्पेशलाइज कोर्स रहना चाहिए कि आपने इसको कोर्स किया पाइपिंग में किया, तो आप फिर वो लाइन में डाइवर्ट हो जाए। पाइपिंग किया तो आपको उधर फ्लूइड मैकेनिक्स, पाइपिंग, मेटलर्जी, टॉम सॉम सब कुछ उस इंडस्ट्री में आएगा। अब जब आप एचवीएसी के उधर डाइवर्ट हो जाएगा तो आपका बेसिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, ये सारा आरएसी वगैरह वो सब आपका इसमें डाइवर्ट होएगा। अब क्वालिटी या क्यूए क्यूसी में जाओगे तो उधर अलग चीजें डाइवर्ट हो जाएगी। तो आपको मेन अपना गोल सेट करना है कि आपको जाना कहाँ है करके। हाँ बोलिए। एचवीएसी कोर्स का ड्यूरेशन अभी मेरा जो था फुल टाइम में, डिप्लोमा मैंने किया था, वो है अराउंड 1 and 2 months का कोर्स है। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो 3 months में होगा, और फुल टाइम में करोगे तो 1.5 month में आपका हो जाता है। और वहाँ काफ़ी आपको मतलब अच्छे जो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड प्रोफेसर, जो आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो सैटरडे संडे या रेगुलर बेस पे कुछ 1 आध 2 घंटा आपको मतलब आके उस चीज़ का नॉलेज देंगे। और कोई क्वेश्चंस है? Hello, Ashish. Am I audible? यस यस।
Okay. One question in my mind was that in during our academics we learn softwares like SolidWorks, AutoCAD. All Hmm. these are related to design and analysis. So, बराबर. is there any software which is related to HVAC which the students can learn when they are in here, what we can say, engineering? So there is one software that is HAP, HAP. Okay, It is means what we are doing, that is our heat load calculation and building designing, that is BMS and HAP. That is one software available in market. So the design which we are doing on psychometry chart and by manual calculation, that uh, software will give you the result. Means you have to put some values in that software, and you will get the answer. Basically, it's kind okay, of a calculative software, so you can get means organize in your college and it will be beneficial for your students. right, बट right, माई मतलब मेरा ये है कि सर जितना हम लोग बेसिक्स पे रहेंगे, क्योंकि हम लोग अभी जो इंटरव्यूज वगैरह लेता हूँ मैं, जो नए नए फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के, अभी फ्रेशर्स या एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के भी हम लोग लेते हैं कि आपको ये आता है, बोलता है हाँ ये आता है, तो उसके बारे में हम लोग पूछते हैं कि आप हमको CFM निकालना, तो वो बोलेंगे वो तो सॉफ्टवेयर से आता है। कुछ भी पूछा तो वो तो सॉफ्टवेयर से आता है। तो आजकल मार्केट में ऐसा हो गया कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स वगैरह है ना, या जो फ्रेशर्स निकल रहे हैं, वो ज़्यादा सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होना चाहते हैं। मतलब हमारे जो फील्ड में सॉफ्टवेयर से है, मतलब डिजाइनिंग के भी सॉफ्टवेयर से, साइकोमेट्री के सॉफ्टवेयर से है। आप टेम्परेचर RH डालो, आपको सारा चीज़ आ जाएगा, कितना ग्रेन है, कितना RH है, कितना ये है वो है, सब कुछ आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट से लेके एंथैल्पी, सारा चीज़ आ जाता है। पर वो कैसे आ रहा है, वो बेसिक जानना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपके पास हर वक्त नहीं रहेंगे। अब अगर आप कोई साइट पे जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, और उस केस में क्लाइंट ने आपको पूछ लिया कि भाई मेरा ये पैरामीटर्स आने चाहिए, तो उस केस में आप सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड हो गए, आपको तो आप उस टाइम पे नर्वस हो जाओगे। बराबर, तो उस केस में आपको बेसिक्स आना चाहिए। सॉफ्टवेयर तो है, सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, आपका ईज कर रहा है काम का, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। अभी हम लोग भी जो ऑफिस में कर रहे हैं, हम लोग मैन्युअली करते हैं, फिर उसको सॉफ्टवेयर में क्रॉस चेक करते हैं। टाइम जाता है भले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने को इतना भी मतलब डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको थोड़ा टाइम लेके ही काम करना है, क्योंकि आप घाई गड़बड़ में अगर डिजाइनिंग कर रहे हो और बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत मतलब खतरनाक होते हैं। हम लोग को फेस कर चुके हैं साइट पे या हमारे मतलब जॉब्स पे। तो सॉफ्टवेयर तो है, जैसे ऑटोकैड है, वो ड्राफ्टिंग के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। जितना भी आप बड़े बड़े कंसल्टेंट्स के पास जाओगे या कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाओगे, सब लोग अपना ऑटोकैड सॉफ्टवेयर वापरते हैं। और उसका भी कोर्स आपको मिल जाएगा मार्केट में। कैड सेंटर वगैरह से आप नहीं करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या जो ऐसे इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड कोर्सेज जो दे रहे हैं मार्केट में, उसमें आप देखोगे तो आपको कैड, 2D कैड, 3D कैड के सॉफ्टवेयर मतलब सिखाने वाले, वो भी HVAC पॉइंट ऑफ व्यू के, वो मिल जाएंगे। फिर एक दूसरा है रेविट MEP करके, जो काफ़ी ट्रेंडिंग है। और ये इसका जो कोर्स वगैरह करके जो बंदा जा रहा है, तो उसको मिडल ईस्ट में जॉब्स का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रहा है। जो रेविट MEP करके एक सॉफ्टवेयर है, इस काइंड ऑफ ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर ओनली। पर उसमें ऐसा होता है, पैरामीटर्स डालने पे आपको डायरेक्ट पूरा डक्टिंग, रूटिंग, कहाँ आपका रजिस्टर्स या डिफ्यूजर्स या ग्रिल लगने, सारा कुछ आपको उसमें दिख जाता है। उसमें काफ़ी मतलब सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर जो भी अपने मैकेनिकल वाले जो बंदे आगे जाके कुछ डिजाइनिंग या ड्राफ्टिंग साइड पे जाना चाहते हैं, तो रेविट MEP करके एक सॉफ्टवेयर है। फिर आपके ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने कॉलेज में भी आप बच्चों को स्टार्टिंग में बता सकते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपको आगे इंडस्ट्री में यूज़ होंगे। राइट, थैंक यू। वन मोर क्वेश्चन कि अभी कंफ्यूजन ऐसा रहता है स्टूडेंट्स लोग का कि चलो अभी डिसाइड कर लिया है कि HVAC में जाना है। हाँ अभी डेफिनेटली ही नीड्स टू डू एन एडिशनल कोर्स आफ्टर बी। अभी हाँ। जैसे आपने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है। सो नाउ हाउ टू चूज अ इंस्टीट्यूट इफ आई वांट टू टेक अ ट्रेनिंग फॉर योर HVAC फील्ड? सो अकॉर्डिंग टू यू हाउ आई नीड टू चूज द इंस्टीट्यूट? इंस्टीट्यूट को चूज कैसे करें? इंस्टीट्यूट जैसे कि अभी ऑल ओवर मुंबई में 3 ही इंस्टीट्यूट है। एक धनुष है, एक सुविद्या है, और एक दूसरा एक डायनामिक करके है। जो HVAC और जितने भी इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड कोर्सेज है, जैसे पाइपिंग हो गया, ये इसके लिए है।
अगर आप पुणे वगैरह साइड जा रहे हैं, वहाँ उसके भी 1-1.5 साल का कोर्स है जो आपको सिखाएगा HVAC के बारे में, कोर HVAC के बारे में, बेसिकली राइट। थर्मोडायनामिक्स वगैरह, फिर बाद में जितने भी हम लोग जो डेली बेसिस पे इक्विपमेंट्स वगैरह यूज कर रहे हैं वो आपको दिखाएगा। सो अगर बेसिकली देखने जाए तो पुणे और मुंबई, सो कंपैरिजन में अगर देखने जाए तो कहाँ पे हम लोग को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा एंड वेयर वी विल गेट मोर चांस ऑफ प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू यू? सर, क्वालिटी एजुकेशन वाइज आप देखोगे तो मुंबई में आपको क्वालिटी एजुकेशन है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हैं, जैसे कि मॉट मैकडोनल्ड है, नेटजिर कंसल्टेंट है, फिर बाद में दूसरे है स्पेक्ट्रम कंसल्टेंट, जितने भी आपके एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के या गवर्नमेंट के या डिफेंस के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके ये सब कंसल्टेंट्स हैं। तो उनका बेसिक जो भी HO है, मतलब हेड ऑफिस वगैरह, सब मुंबई में है। तो कंसल्टेंट्स की भी काफ़ी वैकेंसीज आती है मार्केट में, कॉन्ट्रैक्टिंग फील्ड में भी वैकेंसीज आती है मार्केट में। तो आप बेसिकली देखोगे तो मुंबई इज़ द बेसिक हब, मतलब आपको प्लेसमेंट्स के लिए। और अगर HVAC फील्ड जहाँ सबसे ज़्यादा वास्ट डेवलप हुई है इंडस्ट्रियल वाइज, वो आपका नॉर्थ है, जैसे कि पंजाब है, बद्दी है, हिमाचल है। फिर फार्मा आप देखोगे तो पंजाब, हिमाचल, बद्दी, गुजरात, ये साइड में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। और उसके बाद आप जाओगे साउथ में हैदराबाद, जहाँ सबसे ज़्यादा HVAC के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, और थैंक यू। अगर आपको ओवरसीज जाना है तो सबसे बेस्ट जगह है तो आपको मिडल ईस्ट, दैट इज दुबई, सऊदी, बहरीन। तो सबसे ज़्यादा ये कोर्स ट्रेंडिंग में है और कई सालों से हम लोग भी देखते आ रहे हैं। तो ओवरसीज, आप अगर इफ अ स्टूडेंट वांट टू गो ओवरसीज देन सर्टिफिकेशन का कौन से इंस्टीट्यूट से करेंगे तो सर्टिफिकेशन वैलिड रहेगा? सर, सर्टिफिकेशन ऐसा एज फार एज, मतलब ओवरसीज के लिए कोई सर्टिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे मेरे जो कलीग्स थे, जो मैं सुविधा में किया, मेरा जो डिप्लोमा इन HVAC, ओके। तो वो सारे आए थे, कुवैत से आए थे, कोई बहरीन से आया था, कोई दुबई से आया था। तो उनको बेसिक सर्टिफिकेशन लगता है कि आपका डिग्री रहना चाहिए हाथ में आपके, बी मैकेनिकल का। और अगर आपने कोई दूसरा स्पेशलाइज कोर्स किया रहेगा, दैट इज मतलब मैंडेटरी नहीं है। पर आपको मतलब जैसे कि HVAC इंडस्ट्री में आपको आउट ऑफ इंडिया वगैरह जाना है, तो आपको बेसिक मतलब बी डिग्री आपका रहना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए, क्योंकि ओके। एक्सपीरियंस होल्डर्स का ज़्यादा वैकेंसी, मतलब मिनिमम 1-2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा आपका अगर डिजाइनिंग के लिए जा रहे हैं। और अगर एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू पे या इरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पे आप जाओगे तो मिनिमम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस लगता है। ओके। ओके। हेलो सर, हाँ, हाँ ओके I have a आशीष question. स्वप्नील सर की ओके ओके विचारून घे Continue, sir. Continue. ओके आशिष स्वप्नील हाँ सरांच्याच सर, याला एक कंटिन्यू क्वेश्चन आहे की आजकाल भरपूर हाँ, सारे ऑनलाईन कोर्सेस पण आहेत. म्हणजे जर आपण जर हम्म, सिलेक्ट केलं आपल्या युडीमीवर, कोर्सेरावर जर HVAC जरी टाकलं तर कमीत कमी 20 ते 30 कोर्सेस दिसतात. तर हम्म. ते कोर्सेस खरंच बेनिफिशियल आहेत का की और व्हॉट इज द स्पेसिफिक कंटेंट और व्हॉट इज द स्पेसिफिक सिलेबस दॅट वी कॅन गो फॉर कंप्लायंट नॉलेज इन HVAC? सर, जब ये ऑनलाइन क्लासेस, मतलब ऑनलाइन जो लेक्चर्स वगैरह आपको, या आपको ऑनलाइन जो डिग्रीज वगैरह जो दे रहे, या इसके ट्यूशंस वगैरह चल रहे, उसमें बेसिकली मेरा तो ये कहना है, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप कर सकते हैं, वो आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिलेंगे। पर एक्चुअल जितने भी आपके ऑनलाइन क्लासेस है, दे आर नॉट टेकिंग द स्टूडेंट्स फॉर अ साइट विजिट। क्योंकि ये जो हमारी फील्ड है HVAC में, इसमें सबसे बेसिक है कि आपको साइट विजिट रहना चाहिए। जहाँ हमने अभी किया या जो इंस्टीट्यूट करवा रही है, वो साइट विजिट सबसे मेन है। जब आप साइट पे जाओगे, साइट का एक्सपोजर मिलेगा, तो आप वो चीज़ों को को रिलेट कर पाओगे। आप ऑनलाइन क्लासेस या दूसरा भी जो आप बोल रहे हैं, उधर से आप नॉलेज तो मिल सकता है आपको, पर मेन है कि आप जो नॉलेज ले रहे हैं उसको आप कैसा को रिलेट कर रहे हैं आपके साइट से। क्योंकि ये जो फील्ड सर ऐसे फील्ड है जिसमें मतलब काफ़ी डायनामिक फील्ड है। हर रोज आपको नया नया मतलब ये मिलेगा, मतलब प्रॉब्लम्स आएंगे, नए नए इश्यूज आएंगे, नई नई चीज़ें आप सीखने को मिलेंगे। तो आपको बेसिक ये रहेगा कि आप ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए। पर मेरा ये मानना है कि अभी जैसे कि अगर थोड़ा रिलैक्सेशन आगे मिलता है, तो आप अगर ऑफलाइन कोर्सेज में जाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। बिकॉज ऑनलाइन पीपल्स आर नॉट टेकिंग यू फॉर अ साइट विजिट और फॉर सम काइंड ऑफ इंटर्नशिप।
क्योंकि अपना जो बेसिक जो अपना एजुकेशन सिस्टम में जो हम लोग लैक कर रहे हैं वो है अपना इंटर्नशिप। आता तो सब कुछ है, पर क्या आता है वो अपने को खुद को नहीं पता है। कंप्रेसर देखा है, पर कैसा वर्किंग है वो हमको पता नहीं, क्योंकि इंटर्नशिप अगर जब तक आप नहीं कर रहे हैं किधर, तो आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ का नॉलेज मिलेगा। तो बेसिक आप अगर ऑनलाइन कोर्सेज में करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, बट मेरा अगर ओपिनियन ले तो आप ऑफलाइन कोर्सेज करो, या क्योंकि वो ऑफलाइन कोर्सेज दे टेक द स्टूडेंट्स टू साइट विजिट, उनको इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई करवाते हैं। तो उससे क्या आपका जो नॉलेज है ना ज़्यादा एनहांस होगा और आप चीज़ों को आसानी से कोरिलेट कर पाओगे। ओके ओके। हाँ रत्नेश जी, आप कुछ सवाल हेलो पूछना चाह रहे हैं? हेलो हाँ बोलिए सर। हेलो हाँ हाँ बोलिए। आई कांट हियर यू। हेलो। हेलो हाँ हाँ बोलिए। हेलो। I guess there is some network issue as itself. Utter, you can ask your question. सर माय क्वेश्चन वाज दैट मुझे एक सीनियर से पता चला कि हम्म, हम लोग को सपोज अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे डिज़ाइन इंजीनियर बनना है HVAC इंडस्ट्री में, ओके तो ही सेड कि तुमको स्टार्ट साइट सुपरवाइजर से ही करना पड़ेगा, बिकॉज तुमको मालूम नहीं है VCD क्या है, डिफ्यूज़र 3 वे 4 वे कैसेट्स क्या है, हाई वॉल क्या है, डक्टेबल क्या है। तो वो आपको साइट सुपरविजन करना पड़ेगा, तब जाके आप डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हो। तो नहीं मेरा क्वेश्चन ये हाँ था कि कितना पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगेगा साइट सुपरविजन के लिए, तब मैं डिज़ाइन इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ओके। तो ये जो आपको जिसने भी बताया वो काफ़ी, मतलब उसने डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब डिजाइन में भी दो आता है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिजाइनिंग मतलब एक तो होता है जो लेआउट या रूटिंग डिजाइन होता है कि आपका सिस्टम कैसा जाएगा, और दूसरा डिजाइन होता है जो आपके फिगर्स डिजाइन होते हैं, जैसे कि कोई एरिया में आपका इतना टनेज चाहिए, वो डिजाइनिंग। तो वो डिजाइनिंग के लिए आपको साइट सुपरविजन का जरूरत नहीं है। आपको, जैसे आप फ्रेशर, जैसे हम लोग भी फ्रेशर्स जैसे ज्वाइन होता है, आई वाज एज अ साइट सुपरवाइजर, क्योंकि मेरा जो रोल था प्लानिंग और इसके लिए था, प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर एज अ आप डिज़ाइन इंजीनियर कोई कंपनी में जाते हो, तो आपको जो कंपनी है वो आपको सिखाएगी कि डिज़ाइनिंग कैसे कैसे क्या क्या पैरामीटर्स करने हैं। पर आप अगर साइट सुपरवाइजर के थ्रू आप अगर उस चीज में जाओगे, तो आप चीजों को ज्यादा को रिलेट कर पाओगे, मेरा ये कहना है। मतलब ऐसा कोई रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी या मैंडेटरी नहीं है कि आपको साइट सुपरवाइजर से ही स्टार्ट करके आपको डिजाइनिंग में मिलेगा। पर आजकल आप इंडस्ट्रीज में देखोगे, फ्रेशर स्टूडेंट्स को ज्यादा साइट सुपरविजन के लिए उन लोग लेते हैं। रीजन ये है कि आप कितना जल्दी कोप अप करते हैं। जैसा आपने एक सवाल पूछा कि मेरे को कितना टाइम ड्यूरेशन जाता है कि साइट पूरा समझने में। अभी अपना जो ये फील्ड है, उसमें आपको अपना लिमिटेशन तय करना है कि भाई मुझे इधर तक जाना है, क्योंकि ये फील्ड जितना आप एक एक पॉइंट या एक एक कंपोनेंट में अंदर जाओगे ना, उतना वो इन डेप्थ एक अंधा कुआं है। अब जितना जितना जैसे चिलर्स में जाओगे तो चिलर में एक अलग ही अपने एक वास्ट फील्ड आ जाती है। डक्ट्स में जाओगे तो आपका अलग अलग टाइप के डक्ट्स आ जाएंगे। एयर हैंडलिंग यूनिट्स में जाओगे तो अलग अलग टाइप के मार्केट में आप देखोगे। जैसे अभी हम लोग भी एक R&D कर रहे हैं कि जो आपका कंप्रेसर के बाद जो हॉट लाइन जाता है और जो कंडेंसर का हीट बाहर फेंका जाता है, उसको हम लोग कैसा यूज करें, क्योंकि वो जो हीट बाहर फेंकी जा रही है वो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं हीटिंग पर्पस के लिए, जिससे हम लोग हमारे इलेक्ट्रिकल हीटर्स का कॉस्ट बचा सकते हैं। तो उस पर भी हम लोग R&D कर रहे हैं। तो मेन ये है कि आपको अपना लिमिटेशन तय करना है कि आपको किधर तक जाना है। अभी कुछ कुछ में, मतलब जितने हमारे यहाँ फ्रेशर्स आते हैं, कुछ को 1 साल लगता है पूरा सीखने में, साइट का पूरा ओरिएंटेशन वो सब लेने के लिए। फिर कुछ कुछ रहते हैं, कुछ 5-6 महीने में भी सीख जाते हैं। वो आपके मतलब ग्रास्पिंग पावर पे, आप कितना जल्दी चीज़ों को ग्रेस्प करते हो या कितना जल्दी चीज़ों को आप अपने आप से समझ के लेते हो। क्योंकि कैसा, साइट पे आप जाओगे ना, तो सबसे मेन आपका जो टीचर रहेगा ना, वो आपका रहेगा लेबर। जो आपके वो 200-300 रुपए के जो लेबर रहेंगे, वो जो आपको नॉलेज देंगे ऑन द साइट, वो आपको कोई भी किताब में या आपके कोई भी कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं सिखा सकती। उसके लिए जो आपको बंदे ने बताया कि आपको अगर डिजाइनिंग में जाना है तो आपको साइट पे जाना है, क्योंकि जो छोटी छोटी बारीकियां जो रहती है डिजाइनिंग की, वो आपको जो लेबर है या आप देखोगे, या आप अपने जो इंजीनियरिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है 4 साल का पढ़ाई का,
और जो बेसिक चीज़ें वो उसमें आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको भी चीज़ आपके को रिलेट होगी कि आपको लगा हाँ ये कंप्रेसर मैंने ऐसा पढ़ा था पर ऐसा प्रोसेस हो रहा है, वो सब आपको ऑन साइट सारा चीज़ दिखने मिलेगा। और इतना अच्छा एक्सपोजर मिलता है ना साइट पे अगर आप जाओगे। और उसके बाद अगर आप स्विच करते हो डिजाइनिंग के लिए तो आप मतलब डिजाइनिंग या एचवीएसी इंडस्ट्री में आप मजा एज अ किंग तरीके आप बिहेव कर सकते, क्योंकि आपको हर एक चीज का चीज पता है कि मतलब ये चीज कहाँ जाके रुकेगी, ये चीज दिखती कैसे है। क्योंकि हमने हमारे उधर देखा जो डिजाइनर्स है उनको तो ऐसा लगता है 10 दिन में काम हो जाएगा, पर जो साइट इंजीनियर है जो साइट सुपरवाइजर उनको पता है कि क्या क्या डिफिकल्टीज आते हैं, क्या क्या हर्डल्स आते हैं बीच में। तो वो सब चीज को आप प्रॉपर कैलकुलेट करके भी बता सकते हो कि भाई तुम जो बोल रहे 10 दिन में होगा वो काम नहीं होगा। ये काफी सारी चीजें, एक सारे पैरामीटर्स को हमको पकड़ के आगे बढ़ना है। अगर डिजाइनिंग में उसने तो बोल दिया कि 10,000 CFM और 8.5 टन का मशीन लग रहा है, पर अब आप जब साइट पे जाओगे आप देखोगे तो काफी इक्विपमेंट्स बढ़ जाते हैं। और अगर आप डिजाइन को क्रॉस चेक करोगे तो वो इक्विपमेंट एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग नहीं लिए जाते। तो आपको भी समझ जाएगा कि जो सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट जो हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है एग्जैक्टली, टेम्परेचर RH क्या आपके सिस्टम पे एडवर्स इफेक्ट या इफेक्ट देता है। तो सब आपको अगर आप ऑन साइट रहोगे तो आपको सीखने मिलेगा। सर ये क्या ये बात सच है, मतलब अगर इफ़ यू आर वर्किंग इन अ स्मॉल कंपनी तो वहाँ हाँ पे आपको मल्टीपल वर्क्स करना पड़ता है, मतलब या ड्राफ्टिंग श्योर भी श्योर, और मैं जैसे प्रोजेक्ट मैं प्लानिंग। जिस कंपनी में कर रहा हूँ काम, दैट इज मीन्स एक टाइम पे हमारी कंपनी बड़ी थी पर अब हम लोग सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए। तो छोटी कंपनी में आपको एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा, आपको काफ़ी फील्ड्स, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ प्लानिंग देखता हूँ, परचेज देखता हूँ, वैलिडेशंस देखता हूँ, कमीशनिंग देखता हूँ, प्रोजेक्ट देखता हूँ, साइट देखता हूँ। ये 5-6 फील्ड्स मेरे अंडर में है। फैक्ट्री भी मैं देखता हूँ जो मेरा है कंपनी का। तो ये सब चीज़ आपको जैसा इन डेप्थ जाओगे, छोटे कंपनी में जाओगे तो आपको ये सारा चीज देखने मिलेगा, सीखने मिलेगा। बड़ी कंपनी में जाओगे तो आप एक कैसा बोलते हैं, एक आपको डेडिकेटेड वर्क दे दिया कि भाई तू परचेज ऑर्डर बनाएगा तो तू जिंदगी भर परचेज ऑर्डर बनाएगा, तू डिजाइन करेगा तू जिंदगी भर डिजाइन करेगा। भाई तुमने डिजाइन करके दिया इतना से, अभी वो साइट पे लगा नहीं लगा, लगने पे कैसा दिखता है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, वो सब चीज आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि हमने काफी कंसल्टेंट्स और इनके पास गए हम लोग, उनके बड़े बड़े इंजीनियर है, हाईली पेड इंजीनियर्स लोग हैं, उन लोग डिजाइन कर देते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि जो हमने पेपर में बनाया वैसे का वैसा आपका साइट पे लगेगा, पर वो 110% टाइम वो चीज़ नहीं होती है। काफ़ी वल्नरेबल साइट्स रहते हैं, आपका काफ़ी डायनामिक साइट्स रहते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो जाती है। तो वो कौन समझ पाता है, जो ऑन साइट काम कर चुका आदमी है, जो छोटी कंपनी में एज अ साइट सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है, वो आंसरेबल रहता है कि सर आप ये जो बोल रहे हैं, आप ये जो कर रहे हैं वो गलत है, इसमें मैं खाली आपको सुधारा करना चाहता हूँ कि इतने दिन में नहीं होगा। और छोटी कंपनी में जितना आप जाओगे उतना आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, सीखने ज़्यादा मिलेगा। और सबसे मेन है जो पैकेज सिस्टम पे एज ए इंजीनियर लोग जाते भागते हैं कि भाई उतने का पैकेज मिल रहा है। एक याद रखना है, वी आर ब्लडी इंजीनियर्स, हमको आता सब कुछ है पर क्या करना है वो हम लोग को नहीं समझ में आता है कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। तो जो बोलते हैं ना कि कम सैलरी में, तो कम सैलरी में काम करो। अभी आपके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारियां या कुछ नहीं है कि आप कम सैलरी में करो, पहले सीख लो। मुझे अभी हम लोग मेरे को 6 साल होने आए कंपनी में, सेम कंपनी में। तो सब कुछ अभी भी हम लोग डेली बेसिस पे नया नया चीज सीखते हैं। तो मेन ये है कि पहले सीख लो, फिर बाद में आप पैकेज के ऊपर जाओ, क्योंकि अपना जो फील्ड है मैकेनिकल फील्ड है, दैट इज वेरी एवरग्रीन फील्ड। ये कभी बंद नहीं होने वाला है। और अभी ये जो कोविड जी मतलब जो आया है कोविड, उसके वजह से HVAC इंडस्ट्री का सबसे मेन रोल आने वाला है। क्योंकि हम लोग जब अभी दूसरी कंपनीज वगैरह, क्योंकि जो एयर चेंजेस या जो हम लोग सब जो टर्म्स यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा बेसिक अभी रिक्वायरमेंट हो गया कोविड सिचुएशन में। क्योंकि आपका रूम का जितनी बार एयर चेंज होगा या आपका रूम में जो कंडीशन रहेगा, आपका जो RH टेम्परेचर रहेगा प्रॉपर रहेगा, तो आपका जो बंदे लोग अंदर काम कर रहे हैं सेफ। फिर बाद में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, जो हम लोग के फिल्टर्स आते हैं, UV लाइट वाले आते हैं फिल्टर्स वगैरह, जो आपके जर्म्स, माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकल सबको मार देते हैं। तो वो सी तो जैसे अपना ये फील्ड है, उसमें कैसा है, पे स्केल कम है स्टार्टिंग में। फिर आप जब एक बार सीख जाओगे तो फिर आपको मतलब ये खेल जैसा लगेगा कि अरे ये तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, मोरल अपना हाई रखना है,
इंथुजियास्टिक रहना है कि हमको स्टार्टिंग में आता कुछ नहीं, आता सब है, पर ये इंडस्ट्री के लिए हमको हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है उसको कैसा अप्लाई करना है वो हमको देखना है। तो पे स्केल नो डाउट कम रहेगा स्टार्टिंग में, फिर जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते जाओगे तो फिर आपका पे स्केल बढ़ता है। तो बेसिक ये है कि उसमें घबराना नहीं है कि भाई हम लोग इंजीनियर, हम 8-10 हज़ार के पगार में क्यों काम कर रहे हैं। तो भाई तुमको आता क्या है, तुमने सिर्फ इंजीनियरिंग में सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, पर तुम्हारा स्पेशलाइजेशन किस में है वो तुमको खुद को नहीं पता है। उसके लिए पहले अपना गोल सेट करना है, जाना कहाँ है, जाना यहाँ है, तो उसके लिए अपने को मेहनत करना। थैंक यू सर। सर अभी आपने बोला करके ये करके छोटे से करके स्टार्ट करने के लिए, और मोस्टली है ना कोई 200-300। तो वैसे इंटर्नशिप मैंने किया था, एक 5 स्टार होटल में गया था। तो ओके उसमें मेंटेनेंस में है ना AHU का है ना क्लीनिंग का कर रहे थे। ओके। तो उस टाइम पे CFM का कैलकुलेशन है ना मोस्टली एक मीटर से करते थे। हाँ, और उसके बाद एनोमीटर बोलते हैं उसको। हाँ, तो उसके साथ में है ना वो जो टीम लीडर था ना वो बोलता था करके ना 12/12 करके उसको ऐसे डिवाइड करके करने का, उससे अपना CFM आता है। तो पहले क्लीनिंग से पहले लेते थे, उसके बाद में क्लीनिंग के बाद में लेते थे। हाँ, तो मैक्सिमम उसका मेन रीजन ये है सीएफएम लेना कि जैसे आपके फिल्टर्स जो मैंने बताया 5 माइक्रोन 10 माइक्रोन के जो फिल्टर्स रहते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उसका बुक पढ़ोगे ना तो उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में रहता है कि हफ्ते में आपको प्री फिल्टर साफ करना है, महीने में एक बार आपको फाइन फिल्टर साफ करना है। तो उसमें ये रहता है कि आपको फिल्टर क्लीन नहीं है, मतलब पूरा चोक्ड है, तभी क्या हवा आ रही है वो आपको पहले चेक करना है। फिर फिल्टर क्लीनिंग होने के बाद क्या सीएफएम आ रहा है वो चेक करना। तो इससे आपको ये पता चलता है कि भाई मेरा 10,000 सीएफएम का एचयू था, ठीक है, जब हमने लगाया था। अब चलते गया महीना 2 महीना 3 महीना, किसी ने फिल्टर पे ध्यान ही नहीं दिया और रूम में सब चिल्ला रहे कि हवा नहीं आ रही, ठंडा नहीं लग रहा है। तो बेसिक रूट कॉज तो ये है कि आपका फिल्टर क्लीन नहीं है। फिल्टर क्लीन नहीं है उसकी वजह से आपके काफी कंपोनेंट्स पे इफेक्ट, जैसा है आपके कंप्रेसर पे इफेक्ट। कंप्रेसर कट ऑफ ही नहीं होता है, कंप्रेसर चलते रहता है क्योंकि उसका टेम्परेचर अचीव नहीं होता है। तो जब आपके वो सर ने बोला रहेगा वो एनोमीटर से आप जब चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई 10,000 सीएफएम का एचयू लगाया था, आज वो दे रहा है 6,000 सीएफएम। तो 6,000 पे तो मेरा कॉइल तो ठंडा होएगा ही नहीं, क्योंकि उसको 10,000 सीएफएम जब पास होगा तब ठंडा होगा। तो फिर क्या, आप कॉइल क्लीनिंग किया आपने, कॉइल क्लीनिंग के बाद आपको रिजल्ट तुरंत पता चलेगा कि रूम में आपका टेम्परेचर आ रहे चाह रहे हैं, फिर आपका जो रिक्वायर्ड सीएफएम था वो भी अचीव हो गया। तो वो आपको एक पीरियोडिक मेंटेनेंस में क्लॉज रहता है कि वो आपको करना ही है। एज अ मेंटेनेंस में आप हो तो आपको फिल्टर क्लीनिंग आते हैं, फिर आपका आता है एचओ क्लीनिंग आता है, डैम्पर्स का ऑयलिंग आता है। ये सब FCU भी रहता है ना हाँ, सर? क्या वो, FCU भी। हाँ, फैन कॉइल यूनिट्स रहते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, वो कमर्शियल मतलब ये वो कंफर्ट साइड में आ गया। अभी हम लोग जो कमर्शियल्स में काम करते हैं उसमें एयर हैंडलिंग यूनिट आते हैं, चिलर्स आते हैं, तो उसका मेंटेनेंस में आप जाओगे तो आपको कोर मैकेनिकल पता चलेगा कि आपको एकदम ऐसा लगेगा कि मजा आ जाएगा काम करने में, कि ये सब चीज करने में जो मजा आ रहा है। क्योंकि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मेरा ये मानना है कि जब तक अपना हाथ काला नहीं होता है ना, और अगर आप अपने हाथ से काम नहीं करते ना, तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। अभी जैसे HVAC है, फैब्रिकेशन इंडस्ट्री है, पाइपिंग वगैरह में जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं करोगे ना, तो आप किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई तू इस हिसाब से कर। अगर क्या होता है, अगर आपने कोई भी चीज हाथ से खुद से, अभी जैसे आप बोल रहे कि आप 5 स्टार होटल में उधर मेंटेनेंस में थे, अभी आपने हाथ से फिल्टर क्लीनिंग किया, तो फिल्टर क्लीनिंग का भी एक एसओपी रहता है कि ऐसे ही आप उसको क्लीन नहीं कर सकते। वाटर क्लीनिंग होता है, जेट मतलब जेट वाटर क्लीनिंग जेट होता है। वाटर क्लीनिंग होता है, फिर उसको ड्राई कंप्रेस एयर से सुखाना पड़ता है, फिर उसको ड्राई करना पड़ता है, फिर ही आप उसको लोड कर सकते हैं एचयू के अंदर, बराबर उस है। जो फिन भी रहता है ज्यादातर कहीं पे मॉइस्चर्स के वजह से है ना, पूरा है ना वो पूरा गंदा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो उसको हम्म, केमिकल जेट क्लीनिंग करते थे। हाँ, हाँ, वो तो भी उससे करते हैं काफी, मतलब केमिकल जेट क्लीनिंग करते हैं। फिर कॉइल्स के ऊपर, क्योंकि कॉइल आपका कंडेंस वाटर, कॉइल से वाटर वो आपका अपना चिल्लर जो कंडेंस। मोस्टली रहता है वो तो वाटर कूल्ड वाला रहता है ना, तो पूरा हम्म। एरिया तो उसी में चला है। उसके बाद में ये पूछने का था करके हाँ, अभी अगर सपोज ये है ना HVAC की जगह पे अगर मैं MEP करता हूँ, तो हम्म, उससे मैं HVAC के लिए कर सकते जॉब के लिए अपना वो कर सकते आगे। हैं ना सर, कर सकते हैं। एमईपी में एक पार्ट है HVAC, हम्म
ठीक है, तो एमईपी बेसिकली तीन चीजों से, मैकेनिकल में जैसा आपका एचवीएसी आ गया, इलेक्ट्रिकल में आपके इलेक्ट्रिकल्स आ गए, जिसमें अभी काफी चीजें मतलब इवॉल्व हुई है, जैसे स्काडा सिस्टम्स लगती है, पीएलसीज लगते हैं, वीएफडी लगते हैं, वो सब हम लोग अभी करते हैं। क्योंकि आप अगर कोई फूड इंडस्ट्रीज में जाओगे, जैसे हमने एक प्रोजेक्ट किया था डेयरी का, वहाँ पूरा स्काडा सिस्टम लगाया था कि आप एक कंप्यूटर पर बैठ के दूध जहाँ आपका आ रहा है टैंक में, फिर टैंक से आपका सेपरेटर में जा रहा है, इसमें जा रहा है, सेपरेट हो रहा है, सारा प्रोसेस आपको स्काडा पे दिखता है। तो वो आपका एक फील्ड आ जाता है इलेक्ट्रिकल में। फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स आ जाते हैं, पीएलसी सिस्टम आता है, वो एक आपको चीज सीखने मिलती है। और पाइपिंग, पाइपिंग में कैसा प्रोसेस पाइपिंग रहते हैं, यूटिलिटीज पाइपिंग रहते हैं, फिर फायर फाइटिंग रहता है। तो आपको ये सारा चीज का नॉलेज, तो अभी कंपनीज कैसा कर रही है, जैसे अभी हम लोग का एक्सपीरियंस हुआ है, तो कंपनीज क्या करती है, ये 3 बंदों को क्यों हम नौकरी पे रखे, मैकेनिकल के लिए एक रखे, इलेक्ट्रिकल के लिए एक रखे, पाइपिंग के लिए एक रखे। अगर तीनों का काम एक बंदा कर रहा है, तो हम लोग एक बंदे को उतना सैलरी देंगे, तो उसमें कंपनी का भी फायदा है। समझ रहे हैं? तो एमईपी करने पे आपको तीनों चीज का नॉलेज मिलेगा। सर जसं आपने आता सांगितलं एमईपी म्हणजे डिझाईन इंजिनिअरसाठी ॲज अ एमईपी म्हणजे मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल आणि पायपिंग. तर ते एक स्पेसिफिक कोर्समध्ये हे तिघांचं नॉलेज मिळू शकते. हाँ, का बराबर। तीन डिफरन्स तीनों में, हाँ। तीन डिफरन्स कोर्स आहेत म्हणजे नहीं, कसं? 3 डिफरेंट कोर्स नहीं है सर। जब आप रेविट एमईपी का कोर्स करोगे या बीएमएस का कोर्स करोगे, दैट इज बिल्डिंग मैनेजमेंट सर्विस, उसमें आपको पूरा ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी जैसे कोर्सेज मार्केट में है, जैसे एमईपी आपने बताया, फिर बीएमएस सिस्टम है, तो ये इसमें आपको सारे का नॉलेज, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल के लिए अलग जगह नहीं जाना है, पाइपिंग के अलग, तीनों का नॉलेज आपको एक ही जगह पे मिलेगा, ऐसा। सर ओके सर. और कोई क्वेश्चन सर? या किसी को कुछ पूछना है इंडस्ट्री के बारे में, ये या और कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। I think so, sir. You have cleared maximum doubts of student, and according to me, this has been the very interactive session of whatever we have held earlier. So I would like Krunal Patil to please carry on with the Thanksgiving. Thank you, sir. I, Krunal Patil, on behalf of Mechanical Engineering Department and Viva Institute of Technology, gives you a really heartfelt thanks to our chief guest, Mr. Ashish Lad, sir, who spent his busiest time gracing the occasion. Today we had opportunity to hear your thoughts. This will give us a definitely encourage in our future events. And thank you for clearing our basic concept regarding HVAC industry. A special mention to our principal, Dr. Arun Kumar sir, being the catalyst that inspire us to do our best and stand a pillar of power with a deep sense of appreciation. I also thanks to our HOD, Niyati Raut ma'am, and all our staff. And I also extend my thanks to Professor Raj Devkar sir for organizing this wonderful session for us. I would also like to thank all of the people without whom this session would not have been successful. I thank you, Professor Swapnil Rao sir, for giving me this opportunity to coordinate this session. Thank you. Yes, students, you can please enter your feedback into the chat box. And thanks a lot, Ashish sir. Definitely in future we will like to have you on board, and if there is anything our students सर आई वांट require. टू ऐड समथिंग दैट अगर कुछ Yeah, ऐसा sure. साइट रिलेटेड या साइट विजिट वगैरह कुछ आपको अगर करना रहेगा, Yeah, तो उस चीज के लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। हमारे जो Definitely, काफी definitely. मुंबई वगैरह साइट चलती रहती है, तो definitely. मैं आपको साइट विजिट के लिए भी मतलब जो आप मतलब अपने जो स्टूडेंट्स है उनको हम लोग दिखा सकते हैं कि आपको कंपोनेंट्स दिखाने मिले हो, मतलब देख सकते हैं, उसकी वर्किंग्स दिखा सकता हूँ। तो आपको मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी काफी बेनिफिट रहेगा, एक साइट विजिट भी हो Sure, sure. जाएगी। और उस चीज के लिए हम लोग मतलब उस चीज के लिए मैं ओपन हूँ, मतलब मैं Yeah, खाली मेरा खाली शेड्यूल रहेगा उस तरह से, तो मैं आपको
help us. Definitely. Once the college starts in the offline mode, we'll be definitely requiring industrial visit to related to our certain subjects of thermal engineering. So that time, and with also with respect to our RAC subject, so we'll definitely contact you, and Okay. we'll try to arrange the visits. Okay. So thank you everyone. You can leave the meeting. Thank you, Ashish sir. Thank you.